welcome to the mega day 2 of English fluency sessions. And what if I tell you the best time to become fluent in English was around 1.5 months ago, if you guys would have started with us. But what if I tell you today the magical date, the 1st of December, and आप में से कितने ऐसे लोग हैं, if I would love to start this particular thing with this question, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, those who dreamt about speaking in English fluently in the year 2023? Let me know. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो एक सपना देखा था कि यार इस साल तो 2023 में I'm going to become fluent in English. But how many of you guys are able to achieve that particular goal? And I'm hoping and I expect that as you guys are here, so 95% people, kind of, we guys have been, we guys have failed in achieving our goals. Yes or no? How many of you guys can relate with it? मुझे बताओ, हाँ या ना? ये एक सच बात है ना कि हमारा गोल तो था पर हम अचीव नहीं कर पाए. Now what if I tell you that still this particular new is not over? Still we have this particular one damn month. Still we are left with those 31 days. And how many of you guys are ready to bring that particular impact in you within the next 31 days? Let me know. How many of you guys are ready? How many of you guys are ready that यार इस साल में 11 महीने मैंने कुछ नहीं किया, but we guys are going to practice in this particular 1 month in such a way that the entire 11 months of procrastination, of delays, we guys are going to cover up each and everything. Start करें क्या? Ready? Excited? And if it in one word you need to describe, how was your day one yesterday? What would be that one word? मुझे बताओ. एक word में अगर आपको describe करना है कल का दिन, how was it? Let me know. Amazing, outstanding, right, awesome, superb, excellent, amazing, awesome. Like the words are less. Chalo. So guys, the people, those who are attending it for the very first time, I love to start it with a short introduction. देखो मैं आपको पूरा एजेंडा बता देता हूँ. आज बहुत सारी अमेजिंग एंड मैजिकल चीजें हमें करनी है. कल हमने 10 points, important points डिस्कस किए थे. Today we guys have to discuss 10 more points. रिवीजन होगी. पहले मेरा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम कल के लिए रिवीजन करेंगे. And then we guys are going to teach you, and then also we'll be selecting people for the scholarship. And there is one more beautiful thing जो scholarship के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. Like मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, because more than 78 people have already become the part of the elite talkers because they want to see the change in their selves in terms of English. अभी मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा. अभी chats को कर देते हैं close, and I'll give my little introduction to each and every one of you. My name is Aman Maskeen and I am here just to make you guys fluent in English. And कैसे? Simple logic है. By training you guys with the new methods through the new methods like English Astra, water tank principle. आज हम इन सारी चीजों को deep में देखेंगे. Who principle, TAF principle, English speaking, building, smart vocabulary hacks, actors and cricketers का क्या secret होता है, इसको हम आज discuss करेंगे. Plus, I'll also give you the chance for the scholarship. And by the way, जो लोग आज 9 o'clock तक रुकेंगे, only those will be getting the chance for the 50% scholarship. And even the exact roadmap आपको English में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, I'm going to let you know each and everything. कल सबको टी टेक्निक अच्छी लगी. Everyone loved each and everyone, right? Everyone loved each and everything. So yeah, these are going to be my little achievements. Like I've been, like our achievements have been showcased on Aaj Tak, India News, Josh Talk, Malaika from Mandera to Irfan Pathan. Rajasthan government awarded us for our valuable contribution for the country. But now, these particular things are irrelevant if I cannot contribute in your life. Right? Chalo, start kare. Shall we begin? Chalo, start karte hain. Excited for it? I know someone is saying that, Aman, I love you and I love you too, Aman. Like ek Amani student hai. So this is what it is. Right? ठीक है, chalo. Now, let's discuss this particular wonderful thing. Okay. We are already houseful. फटाफट start करते हैं. This session will run till 9 p.m. And कल हमने क्या किया था? Let's quickly discuss that ताकि हम बिल्कुल sync में आ जाएं. And so that we should not have any problem. Ready for the revision? कितने लोग ready हैं 5 मिनट के लिए कल के revision के लिए? And then we guys are going to start with the formation sheet. करें? Revise करें? चलो. Let's quickly get started. Just give me a quick minute. मेरी screen सबको visible है? मुझे बताओ yes or no. So we started from the first OMG point. कल हमने सबसे पहली चीज जो सीखी थी वो ये सीखी थी कि यार अगर मेरा जो ब्रेन है उसमें इंग्लिश ही इतनी है तो मेरे माउथ से इंग्लिश इतनी ही निकलेगी. So the first lesson which we understood yesterday कि in order to speak something, in order to speak any kind of English, my brain should be filled with the correct knowledge of English. अगर मेरे दिमाग में इंग्लिश नहीं है मेरे मुंह से इंग्लिश निकलेगी नहीं. And this is the first point
which we discuss. The biggest mistake जो लोग करते हैं कि उनका दिमाग खाली होता है और वो इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं, बट हमारा गोल क्या है कि ब्रेन को फिल करना है करेक्ट इंग्लिश से, तभी तो हम अपनी जो माउथ है, जो हमारी टैप है, उससे इंग्लिश को फ्लो करवा पाएंगे. दैट्स इट. द सेकंड थिंग जिसने हमारा बिल्कुल दिमाग, राइट, ठीक है, एक ऐसी चीज जिसने बिल्कुल हमारा दिमाग हिला के रख दिया था, एंड दैट वाज द न्यू इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एंड दैट वाज कि यार अगर इस दुनिया का तुम्हें इंग्लिश में मास्टरी करनी है तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रूल्स को देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है. बस हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट कैसे करते हैं, फिनिश कैसे करते हैं. स्टार्ट करने के लिए हमें डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस पता होनी चाहिए, एंड फॉर्मेशन शीट के बारे में पता होना चाहिए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी अंडरस्टूड इन I2. टू मेक माय इंग्लिश करेक्ट, आई शुड नो हाउ टू स्टार्ट एंड फिनिश. To start a sentence, I must know the magic of D technique and time and sense. And finish करने के लिए मुझे formation sheet की जो trick होनी चाहिए, right? ठीक है, trick जो होनी चाहिए वो मुझे पता होनी चाहिए. Done? How many of you guys are enjoying it? मुझे बताओ. हाँ या ना? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है that I am revising each and everything, right? Because जब तक हम just take 5 minutes, that's it, ताकि हम लोग एक ब्रश अप कर पाए. And what was the wow point? The wow point was D technique. D technique मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा. बहुत सिंपल है. कोई भी सेंटेंस आ जाए, सबसे पहले we need to look for completing the sentence and then we just need to come back. This is exactly what we did in the I3. Now जो important point 4 था, कल 4th point पे हमें एक चीज समझ में आई कि इस दुनिया में ग्रामर जैसी चीज कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ग्रामर जैसी कोई चीज होती नहीं है. Grammar is just the combination of time and sense, and that's exactly what we understood. Grammar is nothing. English is just the combination of time and sense. एक बारी हमने time and sense को master कर लिया, we guys are going to master each and everything, and that's exactly what we did. And time का मतलब क्या होता है? Present, past and future. And सबसे important चीज जो कल हमने सीखी थी, sense तो सीखा ही कि सेंस सिंपल होता है, कंप्लीटेड होता है, कॉन्टिन्यूटी होता है. बट कॉन्टिन्यूटी में ना शुरू से हमें एक डाउट था कि जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते थे ना, कि मैं कल अपने जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, हमें लगता था कि ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है. बट येस्टरडे वी अंडरस्टूड कि कॉन्टिन्यूटी कैन बी ऑफ पास्ट एज वेल, the continuity can be of present as well, and it can be of future as well. That's exactly what we understood yesterday. कि continuity, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, continuity is not just about present time, it also includes the past time and the future time. Yes or no? सबको क्लियर है? How many of you guys are loving this particular thing? हम सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. एंड फिफ्थ पॉइंट वाज वेरी सिंपल कि यार इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लेना गाइस, राइट, repetition and revision is very important. Always remember. आगे पढ़ने का क्या फायदा, राइट, आगे पढ़ने का क्या फायदा जब हमने कल का रिवाइज ही नहीं किया. सिंपल सी बात ये है यार, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, या तो टाइम उसका पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा. सेंस या तो सिंपल होगी, कॉन्टिन्यूटी होगी, कंप्लीटेड होगी, एंड दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड विद ऑल दीज पर्टिकुलर अमेजिंग पॉइंट्स. नाउ एक बहुत ही इनक्रेडिबल पॉइंट आया था कल, जो बिल्कुल लाइक यू गाइज वर टोटली ब्लोन अवे, एंड दैट वाज कि अगर हमें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो हमें एक गेम को प्ले करना है. उस गेम को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन शीट्स. यस और नो? फॉर्मेशन शीट्स कहते हैं. एंड मैंने कल आपको बताया था कि आज हम एक गेम खेलने वाले हैं. इट इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग. कि लाइक मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विदिन 2 minutes you will be able to make each and everything happen. And ये जो formation sheet है हम इसको भी disclose करेंगे, and that's exactly what we did. Mastering English fluency is all about playing the new game of formation sheet, not about learning old grammar rules. Now, what was so amazing in this particular I8 thing? यार इस I8 point में important 8 point में ये amazing चीज क्या थी? Amazing चीज ये थी कि कल मुझे इतना हैरानी हुई कि यार हम लोगों को ना फ्लुएंसी चाहिए, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि फ्लुएंसी मतलब होता क्या है. हाँ या ना? हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि भाई फ्लुएंसी होता क्या है. कल ये पता चला, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, दैट फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश, दैट टू क्विकली विद कॉन्फिडेंस. एंड ये चीज भी और पता चली कि जब तक मैं करेक्ट नहीं हूं, मैं क्विक कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस felt this particular thing? And this is the same error which maximum people do. राइट, सबसे पहले हमें अपनी इंग्लिश में करेक्ट होना है, फिर फास्ट एंड क्विक होना है, एंड देन द कॉन्फिडेंट पार्ट विल टेक केयर ऑफ. नाउ एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी अंडरस्टूड. एंड आपने ये लिखा था अपने नोट्स में, नाउ आई गॉट द राइट मीनिंग ऑफ फ्लुएंसी. एंड नाउ द अनबिलीवेबल टर्न व्हिच हैपेंड, राइट, कल जो हमने एक बहुत ही अनबिलीवेबल चीज सीखी, एंड दैट वाज समथिंग अबाउट कि भाई हमें वो नहीं करना जो हम चाहते हैं, हमें वो करना है जो फ्लुएंसी चाहते हैं. एंड द पॉइंट इज कि अगर आप करेक्ट नहीं हो
तो क्विक एंड कॉन्फिडेंस पे अगर आप 30,000% भी एफर्ट्स दे दोगे, नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट. How many of you guys can relate with it? This is exactly what we are doing. We are actually doing the revision. क्योंकि ये नए लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमन सर कल का ही पढ़ा रहे हो. बेटा आप लेट हो. The point is कि हम लोग कल का रिवाइज करवा रहे हैं. ये नए लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप रिपीट करवा रहे हो. वो तो होना ही है. रिवीजन मतलब रिपीटेशन ही तो होता है, तभी तो दिमाग में ज्ञान घुसेगा. सिंपल सी बात यही है, राइट? पेशेंस रखो, क्योंकि ये कितनी अजीब बात है ना. एक इंसान पिछले 20 साल से फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, और विद इन 15 मिनट में वो अपने पेशेंस रूल लाइक लूज कर रहा है. This is totally bullshit, right? As simple as that. I keep my communication very raw, very simple, because I know that if you guys will be here till with me till 9 p.m. आपको आज जो मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, you guys are going to be blowing your mind off. आज का सेशन अगर किसी ने मिस कर दिया, I am not at all rude in saying कि आप पूरी अपनी लाइफ की इंग्लिश को मिस कर दोगे. इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. एंड सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आज के सेशन की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलने वाली हैं. आज के सेशंस की पीडीएफ नहीं मिलने वाली हैं, और आज के सेशन के जो क्लास नोट्स हैं वो भी नहीं मिलने वाले हैं. सो द पीपल दोज हु आर फोकस्ड, द पीपल दोज हु आर हंग्री, टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड फोन को छोड़ दो, राइट? फटाफट अपने लैपटॉप में आ जाओ. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, राइट? मैं 2 मिनट दे रहा हूं, लैपटॉप में आ जाओ, बिकॉज वी गाइस आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मेशन शीट विद इन 2 minutes नाउ. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी अंडरस्टूड कि आई डोंट हैव टू डू व्हाट आई वांट, rather I want to do what fluency wants. मतलब करेक्ट होने, क्विक एंड कॉन्फिडेंस पे बात पे ध्यान देना. एंड एक और सरप्राइजिंग I10 पॉइंट ये था, which was legendary ताफ प्रिंसिपल. ताफ प्रिंसिपल was very simple यार, कि अगर एक इंसान का भी टेक्स्ट ठीक नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट करने में हमें 5 से 10 सेकंड लगते हैं, अगर मेरा दिमाग 5 से 10 सेकंड में ही ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो वो ऑडियो एंड वीडियो कैसे कर पाएगा? सो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी द रॉन्ग प्रोसेस. This was considered to be the wrong process. Rather, this was the easiest process. This was the easy process, and that's exactly what we need to do. Done? This is exactly what we did. क्योंकि हमें biological right होना है, right? हम दिमाग के खिलाफ नहीं जा सकते. Now, these all are the important things. I want Rajat, please open up the chat box. How many of you guys felt amazing after revising all these particular 10 points? Let me know. How many of you guys excited? कितने लोगों को अच्छा लगा that we did all these amazing 10 things? Now, how many of you guys are ready for the interesting? आप ये देखोगे, okay, I have something surprise for you. Look, this is what we need to cover now. Step by step. We guys are gonna cover till I-25 today. धमाका होगा, knowledgeable धमाका होगा today. Like, wow, I am all set. चलो यार, फटाफट ready हो जाते हैं, फटाफट start करते हैं. Here we go. Everyone, now you guys can see my screen. इधर आ जाओ. चलो, अब let's quickly begin. All clear? All set? Here we go. How many of you guys are ready? चलो start करते हैं, ठीक है? अब देखो, and कल day 3 से we guys are gonna do the practical execution step by step points. कुछ चीजें रह गई हैं, scholarship and even आप लोगों का रूटीन बनाना, आपको लाइव प्रैक्टिस देना. That's exactly what we need to do. And now let's quickly get started. चलो guys, हम लोगों ने डी टेक्निक टाइम एंड सेंस कर लिया है. अब पॉइंट की बात आती है, फॉर्मेशन शीट्स क्या होती है, उसका यूज क्या है. बिफोर आई लेट यू नो अबाउट द फॉर्मेशन शीट ना, एक छोटा सा टॉपिक है विच आई विल रिवाइज, एंड दैट टॉपिक इज रिगार्डिंग द वर्ब्स. मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बट कितने लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे? लाइक आज हमें बहुत अमेजिंग चीजें करनी है, द गेम इज अबाउट टू हैपन, राइट? सो बट कितने लोगों को एक तो ये चीज समझ में आ गई है कि बचपन में ना हमने वर्ब्स जैसी कोई चीज पढ़ी थी. वर्ब्स मतलब क्या होता है? एक्शन. यस और नो? एंड एक्शन में कितने लोगों को याद है हमने पढ़ा था V1 V2 V3, राइट? जैसे होता है ना, ईट, एट, ईटन. यस और नो? यू मस्ट ऑल हैव अंडरस्टूड इट. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना? मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हें ऑलरेडी पता है. एंड इफ आई शो दिस पर्टिकुलर शीट, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि यार V1 V2 V3 वर्ब्स की 3 फॉर्म्स, इनको भी याद नहीं करना. मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. इनको आपको याद नहीं करना. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर V4 ना, V4 इज ऑल अबाउट V1 प्लस ing, एंड V5 इज ऑल अबाउट V1 प्लस S और ES. इतना तो सबको पता है ना? मैं बस अभी आपकी नॉलेज को ब्रश अप कर रहा हूं. इतना तो सबको पता है, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कितने लोग एग्री करेंगे? इतना सब पता है ना? विच इज ग्रेट. एंड अगर आप स्मार्टली नोटिस करो, गो बिकम्स गोइंग. क्यों? क्योंकि V1 प्लस ing एंड V1 प्लस S या ES बिकम्स गो, मतलब गोज. इतना कोई क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं आपको आगे चल के बोलूंगा अरे V4 आएगा, V5 आएगा, लगा लोगे? बिकॉज आई एम नॉट हियर टू टीच यू. ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है. अब मैं तुम्हारी इसी नॉलेज को देखना कैसे स्मार्टली यूज करूंगा, एंड विद इन 5 minutes you will be able to write anything you want. Ready for the magic?
हाँ रेडी फॉर द मैजिक। और मैंने आपको कल एक होमवर्क जो दिया था वो वर्ब्स के ऊपर ही था भाई, कि वर्ब्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, हाँ या ना? कितने लोगों ने होमवर्क देखा था? तो उसका आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलो अब ना मैं आपको स्टार्ट ही करता हूं एक बहुत ही अनबिलीवेबल पॉइंट से, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन शीट। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, यू पिक एनी डैम सेंटेंस, यू हैव टू अप्लाई द डी टेक्निक। इसको हम रिवाइज भी करेंगे, टाइम एंड सेंस। अपना लॉजिक ये है कि फॉर्मेशन शीट का मतलब क्या होता है एंड इसका लॉजिक क्या है। सो इन अ सिंपल वर्ड्स आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में सुना था कि यार अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है ना, तुम्हारा बेस सॉलिड होना चाहिए? मुझे बताओ हाँ या ना? कितने लोगों ने ये वाली चीज बचपन में सुनी हुई है कि यार अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, तो तुम्हारा बेस सॉलिड होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट बेस, हमें क्या लगता था बेस का मतलब क्या होता है? ग्रामर। और ग्रामर का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रूल्स, हाँ या ना? तभी तो हम आज तक फ्लुएंट नहीं हो पाए। यही सुना है ना कि अरे बेस इंप्रूव कर लो, बेस कर लो, बेस कर लो। बेस मतलब ग्रामर, ग्रामर मतलब रूल्स। तो मतलब हमें लगता था बेस मतलब ये होता है, ये चीजें हो नहीं पाती। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अभी तक हमें जो बेस के बारे में बताया गया ना वो गलत है। जो एक्चुअल बेस होता है वो आपको कभी बताया ही नहीं हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की जब हमने रिसर्च की तो क्या चीजें निकल के सामने आई हैं। आपको पता है कि इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, जो आपको लगता है ना कि वो ये तो ग्रामर का बेस से बनता है, इट इज ऑल बुलशिट। आपको पता है ग्रामर एंड बेस का कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इफ आई टेल यू, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मैं आपके ना बेस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूं विदाउट टीचिंग यू ग्रामर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दुनिया का सेंटेंस उठा लो, डी टेक्निक टाइम एंड सेंस आएगा। फिर ना एक होता है बेस, ना तीन तरीकों का होता है। बेस हैव थ्री टाइप्स, बेस वन, बेस टू, base 2 and base 3, right? This is what the base is all about. What I'm trying to make you understand कि you pick any damn sentence in English language, तुम इस दुनिया का कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस उठा लो, आपको पता है उसमें डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस तो लगेगा ही, पर वो सेंटेंस या तो बेस 1 का होगा, या बेस 2 का होगा, या बेस 3 का होगा। इससे बाहर का इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस पर्टिकुलर थिंग? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? अब आएगा तुम लोगों को मजा, मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज यू विल फील द इंप्रूवमेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यू पिक एनी डैम सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, I11 स्टार्ट हो गया। यू पिक एनी डैम सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, पूरी की पूरी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है आपको पता है वो स्टार्ट होती है बेस 1 से, राइट? एंड इंग्लिश लैंग्वेज खत्म होती है बेस 3 पे। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर इस इंग्लिश लैंग्वेज में करोड़ों सेंटेंस हैं, तो कुछ सेंटेंसेस बेस 1 के होंगे, 2 के होंगे एंड 3 के होंगे, इसके बाहर हो ही नहीं सकते। सो नाउ इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स वेरी सिंपल। हाउ कि हम डी टेक्निक टाइम एंड सेंस में तो मास्टरी हमने ले ली है, उसकी और प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें बस अपना बेस 1 इंप्रूव करना है, बेस 2 एंड बेस 3, एंड द इंटायर इंग्लिश विल बी योर्स। आया समझ में? इजी है हाँ या ना? राइट? सबको ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी है, सिंपल है। बेस 1, बेस 2, बेस 3, सबको ये चीज समझ में आई? एंड एक और चीज है, अभी सब लोगों ने अपनी नोटबुक्स निकाल ली है, हमें I11 पॉइंट लिखना है, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, कि इस इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोगों ने बेस 1 एंड इसी को ही ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे बेस 1 को बोला जाता है फॉर्मेशन शीट 1, क्योंकि फॉर्मेशन शीट के 3 पार्ट्स होते हैं। बेस 1, फॉर्मेशन शीट 1, बेस 1, लाइक फॉर्मेशन शीट 2 एंड द फॉर्मेशन शीट 3। सबको समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मेशन शीट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बेस 1, बेस 2, बेस 3। तो इस दुनिया का हर सेंटेंस डी टेक्निक टाइम एंड सेंस तो लेगा ही, उसके बाद या तो बेस 1 का होगा, या FS2 का होगा, या FS3 का हो गया। एज सिंपल एज दैट। इतना समझ में आया? एंड अब आपके मैं दोनों पॉइंट्स को कवर अप करूंगा। इतना समझ में आया ना? बेस 1, बेस 2 एंड बेस 3। एंड इट वुड बी, अगर हमने बेस 1 को इंप्रूव कर लिया 35% करेक्ट हो जाएंगे, बेस 2 को कर लिया तो 75% इंग्लिश आ जाएगी, एंड बेस 3 करते 100% आ जाएगी। समझ में आया? चलो अब फटाफट लोग अपने नोट्स बनाओ, चलो फटाफट नोट्स बनाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आपने ये नहीं सीखा यू गाइज वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सब लोग अपने नोटबुक निकाल लो, एवरीवन क्विकली। I11 में सब लोग ये लिखेंगे, I11 का ये जो येलो कलर का पॉइंट है, राइट? ठीक है, करो करो फटाफट। देखो, all the English sentences of the world are formed by base 1, base 2 or base 3. That's it. English ends here. The entire English language starts from base 1 and ends at base 3. इस दुनिया की हर सेंटेंस बेस 1 से स्टार्ट होता है एंड बेस 3 पे खत्म होता है। फटाफट अपने नोटबुक पे लिखो, फटाफट नोटबुक पे लिखो, सब लोग लिखो, चलो चलो चलो, here we go.
फटाफट लिखो एंड वंस डन we guys are going to move ahead. फटाफट I11 done. How many of you guys felt amazing? लिखो, like chat box एक बार ओपन करो. Everyone type I11. I11 सब लोग लिखो. How many of you guys felt it? Wow. अच्छा, इंग्लिश बस यही है. बेस 1, बेस 2, बेस 3 खत्म. हाँ, यही है. ज्यादा सोचने का नहीं है. ग्रेट. नाउ एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे which is very important ताकि आपको पता लगे. अभी ना तुम इंग्लिश से डरते ही इतना हो, तुम्हें इंग्लिश आएगी कैसे? तुम्हें लगता है इंग्लिश मतलब करोड़ों यूट्यूब वीडियोस, करोड़ों सेंटेंसेस, करोड़ों इंग्लिश मूवीज. दैट्स नॉट द वे. नाउ द पॉइंट इज, नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर I12 पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपको ये चीज भी लिखनी है. सब लोग ये वाली चीजें लिखें. I12 में ये वाली चीज लिखें. एवरीवन क्विकली. I12 में आपको एक वाली चीज लिखनी है कि 35% ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ बेस 1, 40% इंग्लिश सेंटेंसेस आर मेड ऑफ बेस 2 एंड 25% इंग्लिश सेंटेंसेस आर मेड ऑफ बेस 3. इस तरीके से सारी की सारी 100% जो इंग्लिश है वो बेस 1, बेस 2 एंड बेस 3 पे ही डिपेंडेंट है. लिखो लिखो, ये नोट्स बना लो फटाफट सब लोग. राइट, ठीक है, राइट. फटाफट बेस 1, 2, 3 क्या है मैं आपको बताऊंगा. डोंट वरी, बोर्ड में नहीं, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. फटाफट सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो. डन, टेकन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अब ना मैं आप लोगों की जर्नी स्टार्ट करता हूं यहां से कि यार अब बेस 1 के बारे में समझते हैं कि बेस 1 होता क्या है. एंड आपको लगेगा हाउ सिंपल इज इट टू फ्रेम एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस. देखो यार, अब ना इफ आई टॉक अबाउट बेस 1, ये फॉर्मेशन शीट एक शीट होती है. मैं आपको शीट दिखा देता हूं. पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से एंड 3 से. द फॉर्मेशन शीट 1 इज बूम. दिस इज व्हाट द फॉर्मेशन शीट इज ऑल अबाउट. यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक शीट डिस्क्लोज की है. इसी शीट को बेस 1 की शीट बोलते हैं. एंड दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फ्रेम द सेंटेंसेस. एंड आपको पता है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है. अब जैसे आप लोगों को मैंने ये शीट दिखाई ना, आपको डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस तो समझ में आया. अब जैसे ही मैं आपको ये शीट दिखाता हूं ना, सबसे बड़ा आप लोगों के मन में एक ये लॉजिक चलता होगा, यार ये तो शीट मुझे याद करनी पड़ेगी. नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि इस शीट का सबसे बड़ा लॉजिक पता है क्या है? पहली बात तो आप ये लोग समझ रहे हो ना कि अगर मैंने यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, V2 बेसिकली मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म. हैड V3 लिखा हुआ है तो बेसिकली V3 मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म. राइट. नाउ द पॉइंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर्मेशन शीट को कभी भी याद नहीं करना. ठीक है, शीट को प्रैक्टिकली यूज करते हैं एंड शीट अपने आप समझ में आ जाती है. We have trained more than 15,000 people fluent in English, right? We have made them fluent in English. मुझे एंड मेरे किसी स्टूडेंट को फॉर्मेशन शीट याद ही नहीं है. सिंपल सी बात यही है, क्योंकि फॉर्मेशन शीट याद ही नहीं करनी. हमें इसको प्रैक्टिकली इतना यूज करने की अपने आप याद हो जाए. नहीं आया समझ में? मैं अभी तुम्हें बताऊंगा एंड यू गाइस आर गोना लव इट. बट उससे पहले ना इसके आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ ट्रेनर कि मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके ही चीजें समझाता हूं. फटाफट इसका नोट बनाओ, फॉर्मेशन शीट को डिजाइन करो. फटाफट एवरीवन क्विकली डू इट. ये I13 पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो इसका. लर्निंग दिस शीट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. लाइव प्रैक्टिस इज द ओनली की टू मास्टर इट. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. अरे लो, अभी तुम देखना कि जो तुम सेंटेंसेस अभी बनाओगे विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर, द पीपल, ये देखो 1-2% लोग ऐसे हैं जो इसको लाइटली ले रहे हैं. इंग्लिश उनको लाइटली लेगी. सिंपल सी बात यही है. ना वो यहाँ फ्लुएंट होंगे ना वो कहीं हो सकते हैं. बट I am here for those people, those who are hungry. And I can see 97% of the people, those who are here, they are absolutely hungry. चलो डन हो गया. फॉर्मेशन शीट समझ में आ गई और अब सिर्फ तुम मैजिक देखोगे. अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, राइट? ये तो तुमने I13 कर ली है. इट्स अ सुपर्ब थिंग फॉर यू. अब देखना अब क्या होगा. हियर वी गो. इंग्लिश को करते कैसे हैं? इन अ गेमिफाइंग वे. लेट्स डू इट. अब जैसे मान लो ये सेंटेंस है, विराट स्टेडियम में रोहित के साथ खेल रहा है. अब मैंने आपको क्या बताया? डी टेक्निक लगाना है, टाइम एंड सेंस लगाना है. दैट्स इट. अब लुक हाउ द वे आई विल बी डूइंग इट. सबसे पहले डी टेक्निक लगाते हैं. फटाफट विराट स्टेडियम में खेल रहा है. डी टेक्निक मतलब क्या होता है? वी नीड टू लुक फॉर द रूट का सेंटेंस. तो विराट खेल रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री? विराट खेल रहा है इज द रूट ऑफ द सेंटेंस. हाँ या ना? हाँ या ना? विराट खेल रहा है इज द रूट ऑफ द सेंटेंस. नाउ ठीक है, विराट खेल रहा है. अब टाइम बताओ. चलो सब लोग टाइम बताओ इस सेंटेंस का. चैट्स को ओपन अप कर दो. चैट्स को ओपन करो. अरे टाइम बताओ. इंग्लिश देखना अपने आप बनेगी. इंग्लिश अपने आप बनेगी. टाइम बताओ. एग्जैक्टली, द टाइम इज एब्सोल्युटली प्रेजेंट. वंडरफुल. अच्छा अब सेंस बताओ. सेंस बताओ फटाफट. ये देखो गेम की तरह है. सेंस बताओ. ग्रेट. पीपल आर सेइंग इट्स कंटिन्यूटी. चैट्स को बंद कर दो. देखो आपने एक चीज नोटिस की. आपने बोला प्रेजेंट एंड कंटिन्यूटी एंड इसके नीचे साफ साफ लिखा है इट्स इज एम आर V4. सो नाउ द पॉइंट इज आई विल सिंपली स्टार्ट राइटिंग इट नाउ. विराट राइट. अब यहाँ पे is आएगा. We all know Virat will take is because it's a singular. Virat is, V4 is there. V4 means ing1. Virat is playing
मैंने जो रूट सेंटेंस था उसकी इंग्लिश लिख दी. नाउ आई जस्ट कम बैक. क्या लिखा हुआ है? रोहित के साथ. अरे इसकी इंग्लिश तुम्हें पता है. विद रोहित. हाउ सिंपल इज इट? विद रोहित. विद रोहित. स्टेडियम में. दैट्स इट. इन द stadium. And that's the way I write my first correct English sentences. How many of you guys can relate with it? मजा आया? How many of you guys can relate with it? It is so simple. And आपने एक चीज नोटिस की गाइस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब तुम नोट्स बनाना, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताने जा रहा हूं. दिस इज सो सिंपल. अब मैं आपको एक चीज हाईलाइट करके दिखाता हूं. दिस इज व्हाट द आंसर वुड बी. दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. विराट इज प्लेइंग with रोहित इन द स्टेडियम. दिस वुड बी द आंसर. तुमने एक स्मार्टली चीज नोटिस की कि ये जो फॉर्मेशन शीट है इसको हमें याद करना ही नहीं है. बिकॉज कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर तुम्हारी लैंग्वेज में तुमने जो ये रूट है, रूट सेंटेंस है, अगर उसको कैच कर लिया और अगर तुम्हारा टाइम सही है और तुम्हारा अगर सेंस ठीक है, तुम इंग्लिश ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिख ही नहीं सकते. हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? How many of you guys can relate with it? English language is all about getting your D technique. यार ये गेम की तरह है ना. आप मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है जिसको लगा ये सेंटेंस, जिसको लगता है, राइट, जस्ट गिव मी 1 quick minute, कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? राइट, देयर इज वन पर्सन हु थिंक्स कि यार ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, सेंस कॉन्टिन्यूटी है, तो वो ऑटोमेटिकली यहीं पे ही लाए करेगा. और आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडिया की? और हम लोग बचपन से क्या करते हैं, कितने लोग एग्री करोगे? हमें बचपन से स्कूल टीचर्स ने क्या सिखाया है? गाइस चलो आओ इंग्लिश के रूल्स को पढ़ते हैं. इस एम आर के साथ सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस V4 प्लस आर. दैट इज टोटली बुलशिट. बिकॉज आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि हमें ये चीजों को याद ही नहीं करना है यार, हमें प्रैक्टिस करनी है. वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम एंड सेंस एंड डी टेक्निक का. दैट्स इट. क्योंकि अगर कोई भी इंसान ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या उसको ये रूल्स याद नहीं है? ये तो करना ही नहीं है. सिंपल केस ये हुआ कि उसको कहीं ना कहीं अपने टाइम या सेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? How many of you guys can relate with it? मजा आया? अब सब लोग अपने नोट्स लिखेंगे. चलो everyone, quickly write down the notes. बहुत इंपॉर्टेंट है. Like how many of you guys felt it totally superb? अब आप ये वाले नोट्स लिखोगे. It's going to be an amazing thing for you. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ये लिखोगे. Once my D technique, time and sense is correct, I am error free in English for life. चलो चैट्स को एक बारी बंद कर दो. चैट्स को बंद कर दो. राइट, ठीक है. Here we go. Chats को बंद कर दो. Once my D technique, time and sense is correct, I am error free in English for life. Real fluency results depends upon practicing D technique, time and sense, not on the formation sheet. Here we go. सब लोग समझेंगे इस चीज को. सब लोग इस चीज को समझेंगे. राइट, ठीक है. सबको ये चीज समझ में आए? आज नोट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे. मिलेंगे नहीं तो सब लोग नोट डाउन करें इस चीज को. एक बारी अगर आपका डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस करेक्ट है, उसके बाद आप कभी भी लाइफ में इंग्लिश में गलती नहीं करोगे. उसका रीजन ये है, रीजन सिंपल सा ये है, क्योंकि आपकी जो फ्लुएंसी है वो डिपेंड करती है डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस पे, फॉर्मेशन शीट पे नहीं. आया समझ में? एंड कितने लोगों को ये चीज समझ में आई कि आज आपको, कितने लोगों को ये चीज समझ में आई कि आप अभी तक फ्लुएंट इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि आप I14 पॉइंट का अपोजिट कर रहे थे? हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे कि हम इससे उल्टा कर रहे थे? हमें लगता था ओ ग्रामर के मैं रूल्स पढ़ लेता हूँ, ओ मैं ग्रामर में टेंसेस कर लेता हूँ, ओ मैं ग्रामर में एक्टिव पैसिव कर लेता हूँ. दैट्स नॉट द वे. टाइम एंड सेंस इज द वे गाइस. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? लाइक ना, एक चीज और है व्हिच इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट. सबको मेरी स्क्रीन आराम से दिख रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ना हम ना इस सेंटेंस से सीखने की कोशिश करते हैं. आई नो ये वाला सेंटेंस था ना, इस सेंटेंस में ना कितने लोग एग्री करेंगे कि अभी भी ना हमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं. हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो कहां थी? कितने लोग एग्री करेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा बेस तो स्ट्रांग हुआ, पर यार ये विद कैसे यूज करते हैं ये मुझे नहीं आता, इन कैसे यूज करते हैं ये मुझे नहीं आता, द कैसे यूज करते हैं ये नहीं आता. हाँ या ना? आपको अभी ये यूज करने नहीं आती ना चीजें कि विद कैसे यूज करते हैं, इन कैसे यूज करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? नहीं आता ना? अब व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो गेम मैं आप लोगों को खिला रहा हूं, अब इस सेंटेंस में आपको हर सेंटेंस के बाद यू विल गेट टू नो द न्यू थिंग्स. आपको अपनी हर सेंटेंस में अपनी गलती के बारे में पता चलेगा. कैसे? अब आप देखो, विराट इज प्लेइंग विद रोहित इन द स्टेडियम. अब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई,
अब तुम नोट्स बना रहे हो, अब मान लो तुम्हें विद का मतलब नहीं पता, इन का मतलब नहीं पता, अब इस सेंटेंस से पता चल गया, यही तो प्रैक्टिस का रिजल्ट्स होते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये पता चल गया, ओ अच्छा, अब मेरा बेस तो स्ट्रांग हुआ, पर अच्छा कभी भी अगर ये लिखा हो ना कि रोहित के साथ, अगर जैसे कभी भी मुझे कोई बात बोलनी हो रोहित के साथ, पंकज के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, बहन के साथ, वी हैव टू सिंपली यूज विद। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट कि आज तुम्हें विद का मतलब नहीं पता था, बट इस सेंटेंस में पता चल गया, इसको नोट्स में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी अब नेक्स्ट टाइम कोई सेंटेंस आएगा राजीव के साथ, भाई के साथ, आपके साथ, वी नो हाउ टू यूज विद, तो वी विल सिंपली राइट विद रोहित, विद सोहन, विद प्रियंका। एंड एक चीज और, यहां पे क्या लिखा होता स्टेडियम में, वन मोर पॉइंट आई गॉट टू नो, इन द स्टेडियम में अगर मैं कहीं के भी हूं, जैसे मैं बोलूं मैं रूम में वर्कशॉप ले रहा हूं, राइट, ठीक है, कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, राइट, ठीक है, मैं रूम में, मैं रूम में मैं बोल सकता हूं कि मैं रूम में पढ़ रहा हूं, मैं स्टेडियम में खेल रहा हूं, मैं पार्क में वॉक कर रहा हूं, सिंपल, द इंग्लिश वुड बी व्हाट, इन इन द स्टेडियम, इन द पार्क। अभी अगर आपको ये द एंड द का यूज नहीं आता, आप इसको छोड़ दो, आप बस यही सीख लो, इन स्टेडियम, इन पार्क, इन रूम, इन कार, इतना समझ में आया। नाउ इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर नोट्स। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फेल्ट वाओ कि हमने एक सेंटेंस की प्रैक्टिस की, पर उससे सब लोग, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस गॉट दैट पर्टिकुलर नॉलेज का धमाका, हाँ या ना, मुझे बताओ, कितने लोगों को वो नॉलेज का धमाका लगा कि वाओ यार ये सही है, ये सही है कि अब मुझे कभी भी ये लिखना है, I-15 में क्या लिखना है, रोहित के साथ मतलब विद रोहित, स्टेडियम में मतलब इन द स्टेडियम, रूम में मतलब इन द रूम, समझ में आया, यस और नो। आपने ये चीज पता चली कि वी गाइस आर प्रैक्टिसिंग वन सेंटेंस, बट विद वन सेंटेंस वी आर गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज। विद का भी यूज पता चला, स्टेडियम में होता है तो इन द स्टेडियम करते हैं। द पॉइंट इज कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको कोई सेंटेंस दूंगा जहां पे इट वुड बी ऑल अबाउट विद रोहित, विद सोहन, तो आपको विद यूज करना आना चाहिए, इन द स्टेडियम यूज करना आना चाहिए। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैं आपको सब सिखाऊंगा, ऑन कहां यूज करना है, एट कहां यूज करना है, बट पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें चीजों का मतलब और ज्यादा क्लियर हो जाए। नाउ अब एक और सेंटेंस दूं, आप लोग करोगे, चलो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, राइट, अभी बहुत सारी नॉलेज का धमाका इज गोइंग टू बी हैपनिंग। चलो अब देखो सेंटेंस के लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। नाउ द सेंटेंसेस, मैं कल मॉल में राजीव के साथ मूवी देख रहा था, चलो सब लोग करो, दिस इज व्हाट इट इज। अब मैं आपके सेंटेंसेस को धीरे धीरे एडवांस ही कर रहा हूं। मैं कल मॉल में राजीव के साथ मूवी देख रहा था, अगर तुम नोटिस करो ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, बट स्टेप बाय स्टेप वी गाइस विल बी डूइंग इट। और अब आप देख रहे हो ना, राजीव के साथ मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे नोट स्ट्रांग हो चुके हैं। मॉल में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है मॉल में मतलब इन द मॉल, राजीव के साथ मतलब विद राजीव। अब देखो हाउ आई एम गोना क्रैक इट अप। अब देखो ना, बड़े बड़े सेंटेंसेस वी गाइस आर गोना डू इट विद सो मच ऑफ ईज। अब देखो ना, मैं देख रहा था, you all know it's a clear case of past continuity, was were we for, simple, मैं becomes I was watching। अब तुमने यहाँ पे सीन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, I was watching movie, तो क्या मैं सिंपली लिख सकता हूँ I was watching movie, वैसे तो अ मूवी आएगा, बट अगर तुम्हें अ एंड द भी नहीं पता तो लीव इट। अगर तुमने ये लिख दिया I was watching movie, वो भी सही है, I was watching movie। अब वापस आना है ना, सिंपल सी बात है, राजीव के साथ। रजत चैट्स को ओपन करो, मुझे बताओ व्हाट वुड बी द इंग्लिश ऑफ राजीव के साथ, सिंपल, विद राजीव। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट, यस। अभी हमने नोट्स पढ़े ना अपने, विद राजीव, जैसे उसमें था ना विद रोहित, लाइक कल मॉल में, तो मैं लिख सकता हूं आई वाज वाचिंग अ मूवी विद राजीव येस्टरडे, कल मॉल में ना, येस्टरडे इन द मॉल, एंड दैट्स द वे आई रोट ग्रामेटिकली, लाइक मैंने करेक्ट इंग्लिश लिखा विदाउट यूजिंग ग्रामर। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट, चैट्स को भी बंद कर दो। आया समझ में, आया सबको ये चीज समझ में आई? कितने लोग एक्साइटेड हैं इस गेम को प्ले करने के लिए? इट्स नॉट अबाउट क्या अब हम इन चीजों को याद कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रहा है, रही है, वो है, सो बुलशिट। आई डोंट टेक केयर ऑफ, लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सेंटेंस कौन से ग्रामर कंसेप्ट का है, बिकॉज when we speak or when we write, we are supposed to be correct, and this is the correct English for you. How many of you guys loved it? फटाफट बताओ, enjoying it, let me know quickly guys, let me know quickly guys, let me know, बताओ 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 बताओ, how many of you guys are loving it? Easy है, simple है।
अब एक प्रैक्टिस आपको करने के लिए दे रहा हूं एंड यू गाइस विल बी डूइंग इट, एंड इसके बाद भी और लर्निंग्स आपको मिलेंगी। बहुत सारे नोट्स बनाते जा रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको इस सेशन को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं पीडीएफ एंड वो नहीं दे पाऊंगा। द पॉइंट इज आज आप लिख के प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। चलो, आई एम गिविंग यू वन मोर सेंटेंस, क्विकली डू इट। चलो, मैं 26 जनवरी 2024 को रिपब्लिक डे मना रहा हूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्विकली डू इट एवरीवन। चलो अब आप लोग करो 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 करो, एवरीवन क्विकली डू इट। इट्स अ क्लियर केस। हाँ, फटाफट बताओ। डी टेक्निक, डी टेक्निक लगाओ। मैं मना रहा हूंगा। ओके, ठीक है। मनाना मतलब सेलिब्रेट हो गया ना, है ना, जैसे मना रहा हूंगा। तो डी टेक्निक हो गया रूट सेंटेंस। ये तो क्लियर केस फ्यूचर का है। यार डाउट ये है कि ये फ्यूचर चलो कंप्लीटेड तो होता नहीं। अब ये फ्यूचर सिंपल वाला है या कॉन्टिन्यूटी वाला है? ये कॉन्टिन्यूटी की सेंस आ रही है या सिंपल की आ रही है, मुझे बताओ। कुछ लोग तो कह रहे हैं आई विल सेलिब्रेट, कुछ लोग कह रहे हैं आई विल बी सेलिब्रेटिंग। देखा, फंस गए ना तुम लोग यहाँ पे। यही तो लर्निंग है। दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखा, कुछ लोग लिख रहे हैं इस सेंटेंस में आई विल बी, सम पीपल आर राइटिंग आई विल, एंड दे विल क्राई ओवर कि मुझे ग्रामर नहीं आती, ग्रामर नहीं आती। अबे नहीं, तुझे ग्रामर का कोई पंगा ही नहीं है, तुझे सेंस में दिक्कत है। तुझे ये नहीं पता कि सिंपल क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे कि किसी ने अगर विल बी की जगह विल लिख दिया तो प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है यार, सेंस की दिक्कत है। अभी सेंस की मैं दिक्कत आपको सुधार देता हूं, बहुत सिंपल होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी दी, दैट इज गोइंग टू बी continuity and that would be will be. So the sentence would be I will be celebrating, अब मैं आपको करके ही दिखा देता हूं, I will be celebrating Republic Day। ठीक है, अब देखो, मैं मना रहा हूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, I will be celebrating। फिर क्या आया, वापसी क्या आया, like let's go back, Republic Day, Republic Day would be like as simple as that। अब एक चीज यहाँ पे और लर्निंग के लिए मिल रही है कि क्या लिखा हुआ है 26 जनवरी 2024 को। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने ऑन 26 जनवरी 2024 लिखा हुआ है। अब ना दो चीजें मुझे जो तुम्हें बतानी है, ध्यान से सुनना गाइस। देखो, इस सेंटेंस में ना तुम लोग कंफ्यूज होंगे कि वेदर द सेंटेंस शुड बी सिंपल और कॉन्टिन्यूटी। हाँ या ना? इस सेंटेंस में तुम लोग कंफ्यूज होंगे कि वेदर द सेंटेंस इज सिंपल और कॉन्टिन्यूटी। इधर आओ, ओके ओके ओके, या सब लोग इधर देखो, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस वे। यहीं पे कंफ्यूज हो ना, सिंपल है या कॉन्टिन्यूटी है? यार सब छोड़ो, चैट्स को अभी ओपन करो। गाइस कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें लग रहा है कि एक लेक्चर हो रहा है, बस तुम सुन रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एबल टू फील द कनेक्शन विद मी? मुझे बताओ, चैट्स को ओपन करो एंड आई रियली वांट टू सी। छोड़ो अभी पढ़ाई को, छोड़ो, राइट, बिकॉज if you are not able to feel that particular connection, that is very important. How many just type the word connection? Everyone quickly just type the word connection। अभी हमें बहुत अमेजिंग चीजें सीखनी है, अभी आपको दिखेगा कितने लोगों को अपने अंदर ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो गया है। मुझे बताओ, कितने लोगों को अपने अंदर ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो गया है? जस्ट टाइप द वर्ड ग्रोथ, जस्ट टाइप द वर्ड ग्रोथ। मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एबल टू फील? कितने लोगों को लग रहा है यार मेरा ना जो दिमाग का वाटर टैंक है वो फिल हो रहा है? लेट मी नो, let me know। people are writing growth like crazy, which is absolutely amazing। मैं बीच बीच में chats इसलिए बंद कर देता हूं क्योंकि ना फिर तुम्हारा zoom hang ना होए, right? This is what it is। people are saying connection, growth, I feel my water tank is getting filled up, which is great। chats को बंद करो। अब देखो guys, अब ना तुम future के simple and continuity में फर्क समझो, ज्यादा फर्क नहीं होता। अब देखो, जैसे ये सेंटेंस था, मैं 26 जनवरी को 2024 को रिपब्लिक डे मना रहा हूंगा इज मोर ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर ये सेंटेंस होता ना मनाऊंगा, मैं आऊंगा, जैसे हम रियल लाइफ में हम ना फ्यूचर सिंपल ही ज्यादा यूज करते हैं, आपको पता है। हम हमेशा ये बोलते हैं मैं देखूंगा, हम कभी ये नहीं बोलते मैं देख रहा हूंगा। बट एज फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू गाइस अंडरस्टैंड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी आए ना मना रहा हूंगा, इट इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्यूचर। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि ये नहीं है ना मनाऊंगा। मनाऊंगा इज मोर अबाउट कि मैं जाऊंगा, मैं मनाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा। दैट वुड बी मोर ऑफ सिंपल। समझ में आया ना फर्क कि ये विल भी क्यों हुआ और विल क्यों नहीं हुआ? समझ में आया? अरे समझ में आया? ये बताओ, विल बी एंड विल का कंसेप्ट समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया, नोट्स लिखो फटाफट। तुम अभी बोल देते हो समझ में आया, फिर तुम्हारा मैं जब कल टेस्ट लूंगा तो तुम कहोगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो रेगुलर टेस्ट होते हैं, अब जब मैं तुम्हारा कल टेस्ट लूंगा तुम कहोगे यार पता नहीं है। नोट्स में लिखो, ठीक है? ये गजब वर्ड नहीं लिखना ये गजब वर्ड नहीं लिखना, राइट? I16 में लिखो। देखो यहाँ पे लिखो, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ना 16 में, I16 में। मनाऊंगा इज फ्यूचर सिंपल, मना रहा हूं फिर मना रहा हूंगा वुड बी द वे। यहाँ पे भी मैंने गलती की हुई है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मना रहा हूंगा ऐसे लिखो, मना रहा हूं, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं बस। मना रहा हूंगा वुड बी मोर ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं?
सबको ये समझ में आ रहा है? राइट, सेंस समझ में आई है? फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी समझ में आया? लोग इसी में ही गलती करते हैं, तुम गलती मत करना क्योंकि तुम कंफ्यूज होंगे। और ज्यादा मैं एक बात बताऊं, फ्यूचर सिंपल सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब आप समझ लो 80% यही यूज होता है फ्यूचर में, सिर्फ 20% फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी यूज होता है। तो अगर कुछ कभी समझ में ना आए तो ये फ्यूचर सिंपल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन मत लेना। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कभी कंफ्यूज हो सिर्फ फ्यूचर सिंपल कर देना, डोंट वरी अबाउट इट। आया समझ में? चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। कोई चीजें समझ में आ रही हैं? चलो अब एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें दूंगा, यू गाइस हैव टू डू इट राइट क्विकली। एंड एक चीज और है विच यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ना इस सेंटेंस में एक चीज और पता चली। यार मुझे ना ऑन का यूजेज नहीं आता था, और इस सेंटेंस से मुझे एक चीज और भी पता चली कि यार कभी भी डेट आ जाए ना तो ऑन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि मैं अब आपको न्यू ईयर पे मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन न्यू ईयर, ऑन 1 ऑन 26 कितने लोगों को ये चीज पता नहीं थी? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? कितने लोग एग्री करेंगे? हम ऑन इन में कंफ्यूज हैं, हमें पता ही नहीं इन लगाना है ऑन लगाना है। आज इस सेंटेंस के थ्रू मेरा बेस तो स्ट्रांग हुआ बट मुझे ऑन भी पता चल गया, कुछ पता नहीं चला। नोट्स करो, चलो फटाफट नोट्स बनाओ, एवरीवन क्विकली राइट इट डाउन। लिखना है, थोड़ी अब मेहनत कर लो, 20 साल से इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाए, अब मेहनत से डरो मत। दोबारा नॉलेज का धमाका इज कमिंग, वही I-15 पे लिखो। अरे अभी एट बता दूंगा, पहले एक चीज तो सीख लो। राइट, ठीक है, इधर आओ, सब लोग लिखो वही I-15 पे दोबारा। ये आप देखो, 26 जनवरी को लिखते हैं हम ऑन 26 जनवरी, ऑन 15 अगस्त, ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 12 जुलाई। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आया समझ में? यस और नो? इजी है, सिंपल है। रोहित के साथ मतलब विद रोहित, स्टेडियम में, इन द स्टेडियम, ताकि हमें गलती ना हो। अभी क्या होता है जब तुम बोलने लगते हो तुम्हें समझ में नहीं आता, इन लगाऊं, एट लगाऊं, विद लगाऊं, अब कंफ्यूजन नहीं होगी ना, वाटर टैंक फिल हो रहा है तो कंफ्यूजन थोड़ी होगी। 26 जनवरी को मतलब क्या हुआ? ऑन 26 जनवरी, कोई दिक्कत तो नहीं? इजी है, हाँ या ना? राइट, चलो आया समझ में? कोई इशू तो नहीं? चलो नाउ मूविंग अहेड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। राइट, ये नॉलेज के धमाके आते रहेंगे। चलो अब ये सेंटेंस तुम करोगे, बहुत इजीएस्ट सेंटेंस है। मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से 5 फेब को मुंबई जाऊंगा। करो करो फटाफट सब लोग करो। मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से 5 फेब को मुंबई जाऊंगा। अब डेट आ गई ना, अब डेट से पहले तुम डर जाते थे क्योंकि तुम्हें पता नहीं था ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा। डेट आ गई, मैं रिलैक्स हूं, मुझे पता है ऑन आएगा। हाँ, बाकी देख लेते हैं। अब देखो, अब मेरा मेथड देखो, हाउ क्विकली आई एम गोना यूज इट। मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई, मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से 5 फेब को मुंबई जाऊंगा। तो क्या है? मैं जाऊंगा। अरे ये तो मुझे फ्यूचर लग रहा है, सिंपल लग रहा है। जा रहा हूंगा होता देन इट वुड हैव बीन कंटिन्यूटी, बट मैंने आपको क्या बताया, ज्यादातर लोग फ्यूचर सिंपल ही इज द की, ये कंप्लीटेड एंड कंटिन्यूटी ज्यादा यूज नहीं होते। ठीक है, फ्यूचर में सिंपल बातें ही हम ज्यादा बोलते हैं, फ्यूचर की वैसे भी हम बातें कम ही करते हैं, यही बोलते हैं मैं जाऊंगा आऊंगा तू भी आ जाइयो भाई चल यार। दिस इज गोइंग टू बी द वे कि मैं जाऊंगा तो व्हाट वुड बी द इंग्लिश? आई विल गो। सिंपल सी बात ये है, आई विल गो, आई विल गो। ठीक है, कहां पे? ओ मुंबई। ठीक है, आई विल गो टू मुंबई। अभी डरना मत कि ये टू कहां से आ गया, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो, टेंशन मत लेना। टू मुंबई है, वापस आते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? तुम्हारा दिमाग चलने लग गया? तुम्हें याद है कि पहले ना तुम लोग सेंटेंस देखते थे और कंफ्यूज हो जाते थे, अरे कौन से ग्रामर रूल का है, कौन से क्या है? अब नहीं है, डी टेक्निक लगाने का, टाइम एंड सेंस लगाने का, एंड दैट्स इट, एंजॉय लिखने का, सेंटेंस लिखने का, दैट्स गोइंग टू बी द वे। आई विल गो टू मुंबई, ठीक है, 5 फेब को क्या आएगा? अरे मुझे पता है डेट के पहले ऑन आता है, तो ऑन 5 फेब, ऑन 5 फेब, यस और नो? ऑन 5 फेब एयर इंडिया की फ्लाइट से, बाय एयर इंडिया फ्लाइट। अब देख लो, मैं आई एम जस्ट प्लेइंग विद इंग्लिश लैंग्वेज। क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव स्टार्टेड प्लेइंग विद इंग्लिश लैंग्वेज? मुझे बताओ, अरे मुझे बताओ। टी टेक्निक से बाय, ठीक है चल जाएगा, चैट्स को ओपन करो। कितने लोगों ने अब इंग्लिश में खेलना स्टार्ट कर दिया है? मुझे बताओ, हाँ या ना? मुझे बताओ। हाँ आई नो, अगर आपने फ्रॉम लिखा है वो भी सही है। अरे रुक जाओ, मैं सब बता रहा हूँ। देखो, तुमने अगर फ्रॉम लिखा है सही हो, वाया लिखा है सही हो, बाय लिखा है सही हो, थ्रू लिखा है वो भी सही है। ठीक है, टेंशन मत लेना। और अगर अभी द नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, द एंड द का यूज मैं तुम्हें बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव स्टार्टेड फीलिंग द ग्रोथ? इजी है, सिंपल है, फ्यूचर सिंपल का था। एंड यहाँ पे ना मुझे कुछ चीजें और पता चली। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन सी द ग्रोथ? राइट, ठीक है, ग्रेट। चलो नाउ द पॉइंट इज, आई विल गो टू मुंबई ऑन 15 फेब, राइट, एंड यू फ्रॉम वाया बाय द एयर इंडिया फ्लाइट। एक चीज और पता चली कि कहीं पे भी अगर जाना हो ना, जैसे मैं बोलूं आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू लंदन, आई विल गो टू नानीज, आई विल गो टू ऑफिस, गो टू लॉयर, आई विल गो टू डॉक्टर।
जाने के बाद हम यही लगाते हैं, गो टू डॉक्टर, गो टू लाइक डेंटिस्ट, गो टू डेली, हाँ या ना? इजी है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? अब आप देखो ना, हर सेंटेंस में कुछ नया ग्रोथ दिख रहा है। अभी हम इसको नोट्स में लिखेंगे, क्योंकि पहले क्या होता है, वो क्या लगाऊं? सिंपल ना, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है लाइव ऐसे आके, ताकि हम रोज ग्रोथ फील कर सके। यस और नो? कितने लोगों को ये लाया ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कितने लोग एग्री करेंगे? सिंपल सी बात यही है, ठीक है, कि आई विल गो टू, आई विल भी नहीं आएगा ना। अगर ये होता ना कि मैं जा रहा हूंगा, कॉन्टिन्यूटी आता है, ये फ्यूचर सिंपल है। अरे नोट्स तो पढ़ो, जो तुमने नोट्स बनाए हुए हैं उसी के ही सेंटेंसेस हैं, राइट? ठीक है, इट वुड बी द क्लियर केस ऑफ, अभी हम गो टू मुंबई भी सीख लेते हैं और ये बाय एयर इंडिया भी सीख लेते हैं। अगर मैं देखता हूं मैंने तुम लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए या नहीं बनाए हुए, चलो फटाफट देखो, नोट्स पे आ जाओ, नोट्स पे आ जाओ। वी विल मूव टूवर्ड्स द नोट्स। अब देखो ये आ गया ना फ्लाइट से, फ्लाइट से की इंग्लिश क्या होगी मुझे बताओ? बाय फ्लाइट, यस और नो? बाय फ्लाइट। और यहाँ पे मेरी एक चीज रह गई है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं देखूं अगर मैंने आगे लिखी हुई है। ओ यस, ये भी अच्छा, ये बात का है, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट्स में लिख लेते हैं, फ्लाइट से वुड बी बाय फ्लाइट। और एक चीज और है, वो लिख लेते हैं, जैसे होता है ना कि गो टू मुंबई, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गो टू दिल्ली। तो इससे हमें हमेशा याद रहेगा कहीं भी जाने को, गो टू दिल्ली, गो टू देहरादून, गो टू मुंबई, गो टू लखनऊ। समझ में आया? हाँ या ना? बाय फ्लाइट सही है, या इट्स अ राइट वे टू से बाय फ्लाइट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी तो नहीं है? हाँ या ना? राइट, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है, कुछ लोग ना कंफ्यूज हैं कि यार ये मैं 5 फेब को लास्ट में लिख सकता हूँ। लिख सकते हो, पर तुम कंफ्यूज रहते हो ना। तुम में से कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार आई विल गो टू मुंबई बाय एयर इंडिया फ्लाइट ऑन 5 फरवरी? कंफ्यूज रहते हो ना कि डेट यहां लिखूं, टुमारो यहां लिखूं, बाय यहां लिखूं? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डी टेक्निक लगाओ ना, ना डी टेक्निक। देखो यार, ये करो यार, क्लिक नहीं करना ना। हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में इंग्लिश सीखनी है, तभी तो ये डी टेक्निक की इन्वेंशन हुई है। डी टेक्निक की तभी तो इन्वेंशन यही है कि आप लोग कंफ्यूज मत रहो। सिंपल, मैं मुंबई जाऊंगा 5 फेब को एयर इंडिया की फ्लाइट से। अब आप ये सीक्वेंस पढ़ो, एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? यस और नो? ओ अच्छा, मैंने स्क्रीन बड़ी नहीं की थी। चलो अब देख लो, आया ना समझ में? हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी तुम्हें कोई भी स्क्रीन बड़ी चाहिए हो तो तुम जूम पे उसको क्लिक कर सकते हो। अगर मैंने स्क्रीन शेयरिंग की हुई है और तुम्हें मेरा वाला बड़ा चाहिए, तो तुम लोग उसको क्लिक कर सकते हो एंड वो बड़ा हो जाएगा, राइट? वाइस वर्सा, यू गाइस कैन डू इट। डन? इजी? यस और नो? हाँ, वाया कर सकते हो ना, मैंने लिखा तो हुआ है, वाया, फ्रॉम, बाय, थ्रू, एनी वे यू कैन यूज इट। बाय थोड़ा कॉमन है, दैट इज व्हाट वी। फैंटास्टिक, मजा आ रहा है? नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे? कल जो तुम लोगों ने नोट्स बनाए ना, इतने बेहतरीन नोट्स, स्क्रीनशॉट्स ले लो तुम, वेल डन। तुम लोगों ने लिखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कितने लोग ये चीज को एग्री करेंगे कि इंग्लिश तुम लोग पहले भी पढ़ी है, बट कितने लोगों ने पहली बारी जिंदगी में इतने नोट्स बनाए हैं? मुझे बताओ, हाँ या ना? मुझे बताओ, राइट? ठीक है, मुझे बताओ कितने लोगों ने पहली बारी क्योंकि पहले क्या होता था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और टेबल वेबल। और ना मैं एक चीज जानता हूँ, आपको पता है, एक ना स्टूडेंट है यहाँ पे, राइट, वो ना अभी भी मुझे कह रहा है, अमन सर आप पढ़ाओगे कब? ये कितनी अजीब बात है भाई, ये पढ़ाई चल रही है बेटा। क्योंकि कुछ लोगों को पता है क्या लगता है पढ़ाई मतलब क्या होता है, ऐसे, हेलो गाइज, आई एम योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, माय नेम इज पंकज उदास, but I am very good trainer. Look, I am fluent in English and I am your teacher and I will teach you everything. Okay? Yeah, notebook, pen, take it out, and today we will understand the concept of tenses. Okay? Tenses means grammar is very important, right? And there is one thing known as past tense, right? Present tense पहले पढ़ते हैं. Present tense. Okay? So present tense have certain rules. Rules सब लोग याद करेंगे, right? Subject plus subject. You guys understand what is subject? Subject means a doer, a noun, a pronoun, right? Right? A thing which does the work, the thing which we can see, which we can feel. That is what subject is all about. Verb like V3 and object, right? That's what we guys need to do. Bullshit! तुम्हें ये चीजें सीखनी है क्या भाई? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर तुम में से किसी को भी लग रहा है कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, तो गलत जगह पे आयो। YouTube, गूगल पे तुम आराम से जाओ, 500,000 वीडियोस हैं, आराम से सीखो, राइट? पर मेरा एक सवाल है, व्हेन वी स्पीक एंड व्हेन वी राइट, डू वी डू वी थिंक अबाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट? द आंसर इज बिग नो। एंड आपको पता है, मैं आपको एक सबसे सरप्राइजिंग चीज बताऊं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई एलीट टॉकर्स फैमिली, जिनको हम ट्रेन करते हैं, ये जो मैं आपको फॉर्मेशन शीट दिखा रहा हूं ना, ये हम स्टार्टिंग के सिर्फ 5 दिन ट्रेन करते हैं, जस्ट आपके दिमाग को एक्टिव करने के लिए, तुम्हारे दिमाग को भरने के लिए। छठे दिन पता है क्या होता है?
हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि इस पूरी शीट के बिना डायरेक्टली सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं लिखने हैं। मजा तो वही है ना? डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट मुझे याद है क्या? नहीं याद है, पर मैं तो इंग्लिश आराम से बोलता हूँ। तुम लोग क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखने के लिए ना, ये जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, अब देखा जाए तो ये चीजें भी लाइफ भर नहीं रहने वाली तुम्हारे साथ। राइट, लाइफ भर तो दिमाग रहेगा, पर स्टार्टिंग में जैसे हम स्केटिंग करते हैं ना, तो स्केटिंग में सपोर्ट चाहिए होता है ट्रेनर का। साइकिल में भी वी पुट दोस टू एक्स्ट्रा लाइक व्हील्स। तो ये दो व्हील्स की तरह है कि तुम्हारा दिमाग ना एक बार थोड़े चलने लग जाए, फिर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि विदाउट शीट कैसे लिखना है, सीधा दिमाग से डायरेक्टली। देखा जाए टुडे इफ आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली, बट व्हेन माय बेस गॉट क्रिएटेड ना, दिस वाज माय बेस। आया समझ में? हाँ या ना? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? यस और नो? इजी है? इजी है। अब ना, तुमने एक चीज नोटिस की, सेशन अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, लाइक सेशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि ना अभी तक तुम सेंटेंसेस सही कर रहे थे, बट नहीं, अब तुम सेंटेंसेस में गलतियां करने लगोगे एंड वहीं पे फन है। मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे रहा हूं, चलो फटाफट करो। राइट, नॉलेज का धमाका हम दोबारा करने वाले हैं। आई 15 में मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है, आई हैव ऑलरेडी डन इट, बट बिफोर वी डू इट, क्विकली गाइस, आपने एक चीज नोटिस की, हम लोगों ने स्मार्टली फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी, एंड ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूटी एंड पास्ट का कॉन्टिन्यूटी, फ्यूचर का कंप्लीटेड करने की जरूरत नहीं है। वी हैव कंप्लीटेड बेसिकली हाफ ऑफ द फॉर्मेशन शीट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? यस और नो? लविंग इट? हम लोगों ने, वी गाइस हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फॉर्मेशन शीट। आई नो अभी तुम इस फॉर्मेशन शीट में मास्टर नहीं हुए हो, पर एक एक बारी तो टच हो गया ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है यार। यस और नो? एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट, अब हम एक काम करते हैं, जो बाकी चीजें रह गई हैं इसको हम कल करें या आज ही करें? मुझे बताओ, कल ही करें या आज ही करें? अगर आज कर रहे हैं तो मुझे 15 मिनट फालतू देने पड़ेंगे, 15 मिनट्स दे दोगे? इजी है, सिंपल है। आज 9 o'clock तो 9 o'clock तक तो हम है ही साथ, करें आज ही कर ले, या स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए भेज दें? राइट, सर मैं स्कॉलरशिप ले चुका हूं, मैं कल ही करूंगा। सर मुझे आज ही करना है, आज ही करेंगे, आज ही करेंगे। ओके ओके, राइट, 1 घंटा सर आप ले लो, आज ही करेंगे। चलो फिर ना, आई वॉन्ट कि सब लोग अपनी स्पीड तेज कर लो, आज इसको खत्म करते हैं। राइट, लेट्स कंप्लीट दिस थिंग लाइक टुडे ओनली। चलो, ये चीज समझ में आई है, फ्यूचर ऑलमोस्ट डन। अब ना हम ये पास्ट के जितनी भी 4 चीजें बची है ना, सिंपल एंड कंप्लीटेड एंड सिंपल एंड लाइक कंप्लीटेड ऑफ प्रेजेंट, इसको खत्म करते हैं। डन? यस और नो? समवन इज सेइंग फ्यूचर कंप्लीटेड क्यों नहीं होता? क्योंकि हम यूज नहीं करते, और वैसे भी मुझे लगता है बेटा तुझे फ्यूचर कंप्लीटेड के अलावा भी बहुत चीजें सीखनी है, तो ये चीज 1000 में एक बार ही बोली जाती है, तो छोड़ दे इसको। सिंपल सी बात यही है। चलो, अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, लेट्स क्विकली डू इट। चलो फटाफट करो। सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं। फटाफट एवरीवन क्विकली, वी गाइस आर क्वाइट लेट, 5-10 मिनट हम लेट चल रहे हैं, फटाफट स्पीड पकड़ो। सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं। अब मैं तुम्हें इंग्लिश के कुछ मैजिक दिखाने वाला हूं, बहुत मजा आएगा। करो करो फटाफट करो। सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं। चलो मैं करने की कोशिश करता हूं, तुम भी लोग करो मेरे साथ साथ। सर देते हैं, ठीक है, अभी तुम फॉर्मेशन शीट की हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तभी तो ये है, सर देते हैं, ओके। यार प्रेजेंट लग रहा है, अब कितने लोग एक चीज एक्सेप्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी तो नहीं है, हाँ या ना? कॉन्टिन्यूटी तो नहीं है, हाँ या ना? अब ना, या तो ये सिंपल है या कंप्लीटेड है, कौन सा होगा यार? सिंपल है या कंप्लीटेड है? सम पीपल आर सेइंग कंप्लीटेड, बहुत सारे लोग सिंपल भी कह रहे हैं। यार कंप्लीटेड है, अब तो देते हैं ना, तो क्या है, कंप्लीट हो गया काम। राइट, ये तो कंप्लीटेड नहीं लग रहा, सिंपल है। ओके चलो, यू गाइस आर कंफ्यूज, चलो मैं आप लोगों को इसको करेक्ट आंसर बता देता हूं, एंड डोंट वरी। कितने लोग एग्री करते हो कि तुम लोग अभी इन दो चीजों में कंफ्यूज हो कि सिंपल होगा या कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटेड होगा या सिंपल होगा? डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अभी आप टेंशन मत लेना, अभी आंसर समझो। दिस इज द क्लियर केस ऑफ सिंपल, तो व्हाट वुड बी द इंग्लिश ऑफ इट? कि सर गिव्स, गिव्स क्यों आया? क्योंकि सर वाज सिंगुलर एंड V5 शुड बी देयर। सर गिव्स इंग्लिश लाइव क्लासेस टू अस एवरी डे या डेली। अगर किसी ने ये भी लिखा हुआ है लाइव क्लासेस ऑफ इंग्लिश, अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है लाइव क्लासेस ऑफ इंग्लिश, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है सर गिव्स अस इंग्लिश लाइव क्लासेस, वो भी सही है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन अ डेली बेसिस भी सही है। अरे वो तो वोकैब हो गई ना, मेन आपका ये चीज सही होना चाहिए। आप कुछ भी चेंज कर लो, दिस शुड बी राइट, बिकॉज रूट इज द की। रिमेंबर, रूट, सेंटेंस का रूट इज द की ना। तो अगर ये ठीक है, उसके बाद अस इधर लगाओ, दैट डजंट मैटर। लाइव क्लासेस ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश लाइव क्लासेस डजंट मैटर। मजा आ रहा है?
हाँ या ना? समझ में आया? V5 बेसिकली मींस ऐसे हो, यस बताया था ना, अभी तो बताया V5 कहां सो रहे हो, ये गोज राइट्स, तभी वहां आया गिव्स आया, एज सिंपल एज दैट। इजी, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। समवन इज सेइंग बहुत ज्यादा समझ में आया, राइट ठीक है सर। प्रोवाइड्स नहीं, प्रोवाइड नहीं होगा ना, प्रोवाइड्स होगा बच्चे, प्रोवाइड्स होगा जया, प्रोवाइड्स होगा। अस इसलिए यूज किया क्योंकि हमें आया ना सर, हमें, हमें की इंग्लिश क्या होगी, अस होगी ना, कि सर हमें देते हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कितने लोगों को इंप्रूवमेंट फील हो रही है मुझे बताओ। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मुझे तुम्हें कुछ मैजिक सिखाना है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, अब एक मैजिक सिखाऊंगा, चलो अभी इस सेंटेंस को करो। मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं। चलो एवरीवन क्विकली डू इट। मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं, फटाफट सब लोग करेंगे, हाँ या ना? सब लोग करो, सब लोग करो, राइट ठीक है। क्विकली गाइस, चलो चलो अब एक और सेंटेंस करते हैं। मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं। आपको याद है हमने स्टार्टिंग में यही किया था, मैं लाया हूं। और आपको याद है मैंने फटाफट ये लिखा था, मैं लाया हूं में कि आई हैव ब्रॉट। और आप सोच रहे थे कि ये ब्रॉट कैसे आया, हैव कैसे आया। देखो प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूटी तो है नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो पास्ट का तो कुछ भी नहीं होगा। कितना सिंपल है यार इंग्लिश। तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में सिंपल होता है, कंप्लीटेड होता है, कॉन्टिन्यूटी होता है। यार अब सिंपल होगा या कंप्लीटेड होगा मुझे बताओ। इट्स अ क्लियर किस कंप्लीटेड, क्यों बताता हूं अभी, बट अभी पूरा सेंटेंस लिखते हैं। क्या होगा, आई हैव ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर रवि सर। पर यहां पे एक चीज और सामने आ रही है, हैव ब्रॉट तो समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ न्यू लैपटॉप ठीक है, फॉर रवि सर मतलब रवि सर के लिए। पहले तो ये लिखो जैसे ही होता है ना, रोहन के लिए, मम्मी के लिए, फॉर रोहन, फॉर मम्मी, फॉर पापा, फॉर इंडिया, इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं, राइट ठीक है। समवन इज सेइंग सर मैं आपकी बात करूंगा अपने प्रिंसिपल से स्कूल के लिए। नहीं मेरा स्कूल्स में पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट, स्कूल बहुत पहले छोड़ दिया भाई मैंने, राइट ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर रवि सर, समझ में आया? चलो अब एक नोट्स बना लो, ये रवि सर के लिए क्या अभी हमें फॉर करना है। फटाफट नोट्स बनाओ गाइस, नॉलेज का धमाका करते हैं एक और। ये देखो आ गया ना, रवि सर के लिए, ठीक है। रवि सर के लिए सबको समझ में आ रहा है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंजॉयिंग इट? यस और नो? समझ में आया? हाँ या ना? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? सब खेल टाइम एंड सेंस का, एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, सारा गेम टाइम एंड सेंस का है, उसके बाद कुछ नहीं करना। सारा गेम टाइम एंड सेंस का है बॉस, दैट इज, इट इज एज सिंपल एज दैट। सारा गेम टाइम एंड सेंस का है। सबको ये चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? इजी है, सिंपल है, बहुत ही सही, बहुत ही सही। चलो फटाफट करो 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 करो, लेट्स डू इट। चलो सीरियसली से, यू आर ऑसम। चलो, ऑल द मैजिक ऑफ टाइम एंड सेंस, ये मैंने कल ही बात बोल दी थी। ग्रामर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, टाइम एंड सेंस होता है। चलो ना, आप लोगों को एक ना सीक्रेट बताना है, एंड वो सीक्रेट पता है किस चीज का है? हाँ या ना? कितने लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? वो सीक्रेट ये है कि आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं, मैं रवि सर के लिए नया लैपटॉप लाया हूं। आप लोग कंफ्यूज ये हो जाते हो कि यार चलो ये सेंटेंस प्रेजेंट तो है, पर सिंपल है या कंप्लीटेड है, क्या है? डू यू गाइस एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई सिंपल है कंप्लीट हमें कैसे पता चलेगा? एंड आपने एक चीज नोटिस की है कि मैं इतना तेज इस चीज को कैसे कर पा रहा हूं, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। हितेश इसको भी चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा यार, है ना? ठीक है चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, अब ना प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस आ जाए और तुम लोग अगर कंफ्यूज हो कि वो सिंपल होगा या कंप्लीटेड होगा, मैं तुम्हें एक हिंट बताना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? हिंट के लिए मुझे बताओ, हिंट कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर कभी भी तुम्हारा टाइम प्रेजेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है ना, देखना कि मैं किस तरीके से ट्रिक से करता हूं। इट्स सुपर सिंपल। इफ योर टाइम इज प्रेजेंट एंड यू गाइस आर कंफ्यूज कि सेंटेंस सिंपल होगा या कंप्लीटेड होगा, कॉन्टिन्यूटी तो तुम खुद ही कर लेते होंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एंड दैट पर्टिकुलर लॉजिक इज, गिव मी वन क्विक मिनट, मैं अपने लाइक ओके या इट्स चार्जिंग नाउ। चलो सिंपल सा लॉजिक है, अगर टाइम कभी भी प्रेजेंट है और तुम कंफ्यूज हो कि सिंपल होगा या कंप्लीटेड होगा, 2 मिनट में मैं बताऊं। सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से और बस ये देखो कि क्या कोई हैबिट जैसी बात हो रही है क्या? हैबिट जैसी बात हो रही है क्या? अगर हैबिट जैसी बात हो रही है तो इट वुड बी सिंपल। अगर हैबिट वाली बात नहीं हो रही है, इट वुड बी कंप्लीटेड। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं। अरे हर रोज देते हैं, ये सर की अब आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है, तो क्या होगा? क्लियर केस ऑफ सिंपल। यस और नो?
हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अमेजिंग। ट्रिक पता लगी, मजा आया, ट्रिक पता लगी। सेंटेंस को पढ़ने का, ग्रामर नहीं पढ़ने का, सेंटेंस को फील करना है। और देखो अब नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो। मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं। अब रोज थोड़ी लाया हूं, रवि सर इतने अच्छे नहीं है। रोज थोड़ी है, एक बार ही रो रहे थे, दे दिया, गिफ्ट कर दिया रवि सर को। बर्थडे था, कर दिया। रोज रोज नहीं कर रहा। क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। हैबिट नहीं है ना? एंड ये चीज तभी है जब टाइम प्रेजेंट हो। ये ट्रिक है, इसको नोट डाउन करो। मजा आया? आया ना? अब पता है नोट डाउन कैसे करना है? इधर करना, मेरे तरीके से करना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। इधर देखो, चलो नोट्स बनाओ। हाउ मेनी, जस्ट टाइप अनबिलीवेबल i7। चलो फटाफट लिखो अनबिलीवेबल i7। चैट बॉक्स को ओपन करो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू राइट दिस अनबिलीवेबल i17 पॉइंट? यस और नो? लिखो लिखो, i7 लिख दो। i7 लिखो, i17 सॉरी, i17 सॉरी गाइस, i17। यस और नो? अब i17 में क्या मतलब है? लेट्स फिगर इट आउट। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। अगर टाइम, अगर फटाफट सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कुछ तो करो। इफ टाइम इज प्रेजेंट, रीड द सेंटेंस केयरफुली। अगर हैबिट है तो सिंपल, अगर हैबिट नहीं है कंप्लीटेड है। आज तुम्हें पता चला, टुडे आई होप यू गॉट टू नो कि आप फ्लुएंट इसलिए नहीं थे क्योंकि आप i17 का अपोजिट करते थे। आप नेट पे सर्च करते थे ये हैज कब लगाते हैं, हैव कब लगाते हैं, ये परफेक्ट क्या होता है। दिस इज ऑल बुलशिट गाइस। अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालो यार। मजा आया? हाँ या ना? लॉजिक पकड़ो। और मैंने उसके लिए आप लोगों के लिए ड्रॉ भी कर दिया ताकि तुम्हें समझ में आए। और ये देखो तुम्हारे लिए ये भी कर दिया। इधर देखो, प्रेजेंट है, अगर हैबिट जैसी फीलिंग है तो सिंपल आएगा, और अगर नॉट अ हैबिट है तो कंप्लीटेड आएगा। मजा आया? रीड दिस पॉइंट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? इजी है। हैबिट और रूटीन मोर और लेस एक ही चीज है ना? हैबिट और रूटीन, जो चीज मैं रूटीन में करता हूँ वो भी एक हैबिट हो गया काइंड ऑफ, राइट? ठीक है, बट मोर और लेस आप समझ जाना, हैबिट एंड रूटीन दोनों ही मान लो। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि मैं ब्रश करता हूँ, तो अब ब्रश करना देखा जाए वो मेरी हैबिट नहीं है, वो मेरे रूटीन का हिस्सा है, और एक हैबिट भी हुई। तो दोनों बातों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लव्ड इट। स्क्रीनशॉट्स ले लिया? अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ले लो ये। तुम्हें लाइक 20 साल से तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, राइट, ओके, हियर वी गो। राइट, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर अब तो मैं अपने टीचर को खुद ही पढ़ा दूंगा। राइट, नहीं यार, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। चाहे टीचर्स कोई भी हो, अच्छा पढ़ाए या बुरा पढ़ाए, मुझे लगता है हर टीचर अपना बेस्ट देता है। सिंपल सी बात यह है। चलो अब एक और सेंटेंस है। तुमने एक चीज नोटिस की, तुम्हारा प्रेजेंट भी कंप्लीट हो गया है। हाँ या ना? प्रेजेंट फ्यूचर सब सॉर्टेड है। अब पास्ट का सिर्फ सिंपल एंड कंप्लीटेड समझना है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड? यस और नो? सर मेरे स्कूल में पढ़ाओगे? नहीं, हमारा तो खुद का स्कूल चल रहा है यार। राइट, सो मैं स्कूल में क्यों पढ़ाऊंगा? वी हैव आवर ओन स्कूल। राइट, सो मैं क्यों स्कूल में पढ़ाऊंगा मेरे भाई? राइट, ठीक है, हमारा तो खुद एलीट टॉकर्स के नाम का स्कूल चल रहा है, इतना फेमस। राइट, ठीक है, चलो इतना आया समझ में क्विकली? राइट, ठीक है, आया। सर मैं आप पे फिदा हो गई हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बट मुझ पे फिदा नहीं होना, इंग्लिश पे फिदा होना है बच्चे। ठीक है, चलो राइट, करें, स्टार्ट करें। चलो नाउ अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको करना है। द सेंटेंस वुड बी दिस। चलो, मैं 2007 में गोवा गया था। करो करो करो, प्रैक्टिस करो। चलो राइट, एवरीवन क्विकली डू इट। सब लोग करो, प्रैक्टिस करो। समवन इज सेइंग सर मेरे टीचर को थोड़ा गाइड कर दो। भेज दो, इधर भेज दो, कर देंगे। ठीक है, चलो, मैं 2007 में गोवा गया था, इसकी इंग्लिश लिखो। एंड एक काम करते हैं, रजत चैट्स को ओपन कर दो। सब लोग जूम पे लिखेंगे इसका आंसर। चलो चलो चलो, सब लोग जूम पे लिखेंगे। चलो फटाफट लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो। बहुत अमेजिंग चीज है गाइस, बहुत मजा आने वाला है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एंड यू गाइस विल बी लविंग इट लाइक क्रेजी। आज तुम्हें इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पता लगने वाली है। और तुमने एक चीज नोटिस की, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर हैबिट है तो सिंपल, नॉट अ हैबिट है कंप्लीटेड। ये हिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, ये ग्रामर पढ़ना नहीं है, हिंट्स को याद रखना है, समझना है। चलो चलो चलो, मैं 2007 में गोवा गया था। चैट्स को बंद कर दो। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि सब लोगों को, पहले बात तो ये बताओ, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिस इंसान को ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर लग रहा है? एक तो था, एक इंसान लिख रहा है कि सर ये तो सेंटेंस फ्यूचर होगा ना। गाइज एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं सीरियसली, जिस इंसान को ये सेंटेंस फ्यूचर लग रहा है, नहीं, तुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं, इस जन्म में तो नहीं। गाइज क्या ये सेंटेंस फ्यूचर का है? एक बच्चा लिख रहा है फ्यूचर का है। आप सोच सकते हो जो इंसान इसको फ्यूचर का कह रहा है वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाएगा? तो जिसने ये फ्यूचर लिखा है, नहीं भाई, ना, नहीं नहीं नहीं,
इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, इस जन्म में रहने देते हैं, बाकी नहीं, कोई बात नहीं। हिंदी ठीक है, बढ़िया है, हिंदी की वैसे भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, विच आई पर्सनली डू। तू रहने दे, मतलब पूरा दुनिया हो जाएगा तेरे ना, नहीं नहीं तू नहीं, आज रहने दे, कोई बात नहीं, कोई बात। इंग्लिश मूवीज देखो आप लोग, जिसने फ्यूचर लिखा है, फ्यूचर वाला नहीं हो पाएगा फ्लुएंट गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ। जिसको अगर ये सेंटेंस फ्यूचर का लग रहा है, नहीं भाई छोड़ दे, हम कर लेंगे आपस में, बाकी लोग, तू नहीं, नहीं बस खत्म। चलो मजाक की बात हट के, बट इट वाज सीरियस, फ्यूचर नहीं है ये, पास्ट है। नाउ कितने लोगों ने दो चीजें नोटिस की, ये दो सेंटेंसेस हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं यार। एक इंसान ने लिखा आई वेंट टू गोवा, और एक ने लिखा आई हैड गॉन टू गोवा। कुछ कुछ लोगों को ये सिंपल लग रहा है, कुछ लोगों को कंप्लीटेड लग रहा है। कौन सा सही है भाई, कौन सा सही है, मुझे बताओ, कौन सा सही है? दोनों सही है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि मैं आई हैड गॉन लिख सकता हूं, आई वेंट नहीं लिख सकता? व्हाट इफ आई टेल यू दोनों गलत है? ये लो क्लाइमैक्स, बोथ सेंटेंसेस आर रॉन्ग। हिल गए क्या? बोथ सेंटेंसेस आर रॉन्ग। रीजन पता है क्या है? क्योंकि तुम्हें रीजन नहीं पता, तुम्हें रीजन नहीं पता कि कौन सा सेंटेंस क्यों सही है, दूसरे वाला सेंटेंस क्यों गलत है। हाँ या ना? सिंपल सी बात है ना। अभी तो तुमने एक तुक्का मारा कि आई हैड गॉन होगा, तुक्का मारा आई वेंट होगा, बिकॉज यू गाइस हैव नो आइडिया कि हैड गॉन कब बोलना है, वेंट कब बोलना है। डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? यही लॉजिक है ना। मुझे पता ही नहीं आई हैड गॉन कब बोलना है, आई वेंट टू कब बोलना है, आई हैव नो आइडिया। आई विल गिव यू वन जबरदस्त ट्रिक एंड हिंट, जस्ट अंडरस्टैंड इट। तुम दोनों, तुम सब लोग इस सेंटेंस में कंफ्यूज हो ना, अभी आएगा नॉलेज का धमाका। पहले तो कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? आई वेंट टू गोवा इन 2007, आई हैड गॉन टू गोवा इन 2007। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं गलत हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आप लोग डिसाइड करना, ठीक है? बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब यूज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। व्हाट इज द मंथ गोइंग ऑन? तो वैसे भी दिसंबर स्टार्ट हो गया, राइट? ठीक है, दिसंबर, दिसंबर लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट? आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब सब लोग समझना कि गाइज ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मुझे लगता है सिंपल है पर अमन बोल रहा है कंप्लीटेड है, अमन को लग रहा है कंप्लीटेड है और आपको लग रहा है सिंपल है। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों गलत है, ये सही है ये गलत है, ये सही है। लाइक व्हाट्स अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेट्स अंडरस्टैंड इट, राइट? ठीक है। और हाँ एक चीज और है, डेट्स के साथ ऑन आता है, ईयर्स के साथ इन आता है। इसको भी अपने नोट्स में लिख लो, मैंने नोट्स में लिखा नहीं हुआ वरना मैं आपको दिखा देता। डेट्स के साथ ऑन आता है ऑन 20th अक्टूबर 2011, पर अगर सिर्फ साल की बात करें तो इन आएगा इन 2007। पर अगर डेट आ गई ऑन 22nd अक्टूबर 2007 तो ऑन आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब मैं आपको बताता हूं दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो कभी भी टाइम तुम्हारा पास का हो और तुम लोग कंफ्यूज्ड हो कि यार, तुम लोग कंफ्यूज्ड हो कि सेंटेंस सिंपल होगा या कंप्लीटेड होगा, तो आपको क्या यूज करना है मैं आपको उसका हिंट दे रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर हिंट? हाँ या ना मुझे बताओ, यस और नो? कितने लोग एक्साइटेड हैं कि यार मुझे भी पता चले टाइम लाइक पास्ट है, सिंपल होगा कंप्लीटेड होगा, कैसे होगा? मैं आपको बताता हूं यार। यहां पे ना सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको सेंटेंस पढ़ना है। अगर आपको सेंटेंस नॉर्मल पास्ट का लग रहा है, राइट, तो आप सिंपल यूज कर सकते हो। अगर सेंटेंस में आपको एक्सट्रीम पास्ट की फील देनी है तो यू कैन सिंपली यूज कंप्लीटेड। समझ में आया? अरे समझो, बहुत इजी है, अभी समझाऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? सब लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है? सब लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है? इधर देखो, टाइम पास्ट है और तुम कंफ्यूज हो, सिंपल आएगा कंप्लीटेड आएगा। तुम्हें अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए पता है क्या करना है? खुद से पूछना है कि तुम सामने बोलने वाले को नॉर्मल पास्ट का एहसास दिलाना चाहते हो या एक्सट्रीम पास्ट का। आया समझ में? मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जांपल कैसे। सब लोग समझेंगे मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबे सेंस ठीक हो जाएगी, पूरी ग्रामर ठीक हो जाएगी तुम्हारी, समझना इस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल देखो, सब लोग एक एग्जांपल समझेंगे। अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, मान लो अक्टूबर में आई वेंट टू शिमला, मान लो अक्टूबर में आई वेंट टू शिमला, ठीक है? सब लोग समझना। अब आप लोग मेरे घर आए, आप लोगों ने मुझे बोला कि यार अमन सर हम तो शिमला जा रहे हैं, आप भी चलोगे? अब ना मुझे ना ये बात बोलनी है, यार मैं नहीं जा रहा यार शिमला, मैं अभी तो गया था, राइट, 2 महीने पहले। कितने लोगों को मेरे टोन में पास की फीलिंग आई? हाँ या ना?
मुझे बताओ पास की फीलिंग आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने नॉर्मल पास की बात की, पर मेरे एटीट्यूड से कितने लोगों को ये लगा कि यार अभी मैं 2 महीने पहले तो गया था यार, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। कितनी नॉर्मल वाली फीलिंग है, हाँ या ना? नॉर्मल वाली है या नहीं है? तो ऐसे मेरी फीलिंग नॉर्मल वाली है, तो मैं इंग्लिश में क्या यूज करूंगा? सिंपल। सिंपल पास का मतलब क्या हुआ? V2। तो द थिंग इज आई विल बी जस्ट सेइंग आई वेंट टू शिमला। मैं सिंपल इंग्लिश यूज करूंगा, आई वेंट टू शिमला। मैं बोल सकता हूं 2 मंथ्स अगो, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? 2 मंथ्स अगो, 2 मंथ्स अगो, कोई दिक्कत तो नहीं? आपने मेरा तरीका देखा था ना, मैंने कैसे बोला यार आई वेंट टू शिमला 2 मंथ्स अगो, यू गाइस गो, मैं नहीं जा रहा, अभी तो गया था 2 महीने पहले। अब कहानी में ट्विस्ट है, फीलिंग करना है, फीलिंग इज द की। अब ना, मान लो मैं अक्टूबर में शिमला नहीं गया था, मैं लंदन गया था और अब मैं वापस आ गया। अब आप लोग मेरे पास आए वही दिसंबर को, है ना, आपने बोला यार अमन सर आप तो लंदन जाओगे नहीं ना? अब अभी 1 महीना पहले 2 महीने पहले तो गए थे। पर अब ना, मैं तुम्हें फील दिलवाना चाहता हूं कि यार क्या लंदन, यार मुझे भी ले चलो ना, मैं तो 2 महीने पहले गया था लंदन यार, मुझे भी ले चलो ना। आपने ये वाली चीज नोटिस की कि इन माई कम्युनिकेशन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट विच इज एक्सट्रीम। आया समझ में? कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें क्या फीलिंग दिलवाना चाहता हूं। सबको समझ में आया? दोबारा सुनना, दोबारा सुनना। शिमला की बात थी ना, मैंने कहा क्या है, क्या शिमला, शिमला कुछ भी नहीं है, अब नहीं है वो मजा, नहीं है वो पेरेंट्स के टाइम पे था, तुम लोग। अभी मैं गया था यार 2 महीने पहले, मैं नहीं जा रहा यार। अब यहाँ पे 2 महीने पुरानी बात है, मैं नॉर्मल वे में कह रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा यार, तुम लोग जाओ। नॉर्मल पास, सिंपल। अब लंदन की बात आ गई है, लंदन जाने का लाइक इंटरनेशनल, एवरीवन वांट्स टू ट्रेवल, राइट? सो अब व्हेन द मोमेंट केम अराइव, अब मुझे तुम्हें ये शो करना है भाई मैं 2 महीने पहले गया था लंदन, 2 महीने। अब देखो मैं कैसे शुरू करूंगा, क्या लंदन जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे? ओ सर आप अभी 2 महीने पहले तो गए। अबे 2 महीने पहले गया था मैं लंदन यार, मुझे लेके जाओ। मेरा पासपोर्ट यार, रजत इसको मेरा पासपोर्ट है, 2 महीने हो गए हैं यार, लेके चलो। 2 महीने इज अ डैम, लाइक अब तक क्या, उस टाइम में गया था विंटर्स थी, 2 महीने पहले, 60 दिन, एक्सट्रीम पास्ट। मजा आया? समझ में आया? सो द पॉइंट इज, सो द पॉइंट इज what you want to make the सामने वाला बंदा feel, you have to use your English accordingly। आया समझ में? सबको समझ में आया कि एज पर द फीलिंग। अब आपने ये चीज नोटिस की, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों राइट है। क्योंकि हो सकता है किसी बंदे को ये बोलना हो यार अभी गया था 2007 में, मैं गोया यार, गोवा गोवा यार, राइट, मैं अभी गया था गोवा 2007 में यार, अभी अभी 2007, 16 साल ही तो है, क्या हो गया, मैं नहीं जा रहा। और एक में क्या होता है, भाई 16 साल हो गए गोवा गए हुए, फटाफट चल। आया समझ में? एम्फेसाइज, फील। अभी याद रखना, इस सेंटेंस में मैं नॉर्मल पास की फील देने वाला हूं सामने वाले इस बात बंदे को, इसलिए मैं सिंपल यूज करूंगा। और आई हैड गॉन टू में मैं एक्सट्रीम पास की फील देना चाहता हूं, राइट, इसलिए मैं कंप्लीटेड यूज करूंगा। मजा आया? समझ में आया? और तुम लोग क्या करते हो गूगल यूट्यूब पे, जिंदगी भर यही सर्च करते रह गए, when to use I had gone, when to use when to use had, when to use V2, when to use have। अरे भाई उससे बाहर निकलो, उससे बाहर निकलो भाई, तुम उस टॉर्चर से बाहर निकलो। दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ठीक है, आया समझ? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? एज पर योर फीलिंग्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? ठीक है, आई हैड विजिटेड गोवा इन 2007, हाँ सही है, हाँ वही बात है, आई हैड गॉन लिखो, विजिटेड लिखो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। विजिटेड भी सही है, अरे वर्ड्स में चेंज करने से कुछ नहीं होता, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। आया समझ में? सबको ये चीज समझ में आई है? यस और नो? अब एक दो बच्चे कह रहे हैं एक बारी फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, या मुझे लगता है कि इतना समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, डन है? इतना समझ में आया सबको? सो दैट्स द ओनली रीजन। वंडरफुल, वाज इट वंडरफुल? चैट्स को ओपन करो, जस्ट टाइप I18, I18, वी हैव कवर्ड 18 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन। कितने लोगों को लगा कि हर पॉइंट पे यू फेल्ट अपलिफ्टेड? Was the point step by step? and अभी बहुत पॉइंट्स हमें कवर अप करने हैं, we have to cover up till I20, 21, 22, 23, lot of points are coming up। फटाफट अब नोट्स लिखो, फटाफट अब, बहुत सारी चीजें हमने कवर अप कर ली हैं, बहुत सारी चीजें और कवर अप करनी है, राइट? नॉलेज का धमाका तो तुम्हें मिल ही चुका है, गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई वाला, यस और नो? ये वाली तो चीज तुम्हारी कवर अप हो चुकी है। एंड एक चीज और है, वंडरफुल I18 में आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, ये जो येलो कलर में है, इफ टाइम इज पास्ट, दोबारा समझो, रीड द सेंटेंस केयरफुली। नॉर्मल पास्ट है तो सिंपल आएगा, एक्सट्रीम पास्ट है तो कंप्लीटेड आएगा।
इट डिपेंड्स अपॉन मी, मतलब आप खुद के बारे में लिखोगे कि मेरे पे डिपेंड करता है what feeling I want to give to the listener, extreme or normal, and accordingly I will use simple or completed. मजा आया? Yes or no? हाँ या ना? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आया? मैंने आपको बताया ना प्रिया, बात यहाँ पे 2007 की नहीं है। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है 2007 नॉर्मल पास हो तो आप नॉर्मल पास यूज करो, और हो सकता है आपके अकॉर्डिंग 2007 एक एक्सट्रीम पास की बात हो तो आप एक्सट्रीम पास यूज करो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू कन्वे। कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर द I-19? वन ऑफ द व्हाट, आई एम स्टिल शॉक्ड। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वांट टू बी शॉक्ड नाउ? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज, अच्छा कितने लोगों को, ओके आई वुड लव टू नो कि आप में से कितने लोग ऐसे, वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड 18 पॉइंट्स, राइट? 18 से ज्यादा ही किया, पर तुम में से कितने लोगों को हर पॉइंट में ये लगा यार मैं तो ये गलत कर रहा था, अरे ये मेरा मेथड गलत था, लेट मी नो। जस्ट टाइप आई वाज रॉन्ग, एंड अपनी गलती मांगने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट टाइप आई वाज रॉन्ग, राइट? लिखो लिखो, जितने लोगों को भी 1 मिनट के लिए भी लगा कि, और कितनी बारी लगा मुझे ये बताओ, कितनी बारी आपको ये लगा? एंड आई एम नॉट हियर टू प्रूव यू गाइज रॉन्ग, गलतियां सब करते हैं यार, बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वांट कि हमें गलतियों से सुधरना है? यस और नो? लॉट ऑफ पीपल, समवन इज सेइंग आई वाज रॉन्ग ऑल द टाइम, राइट? अब अगर हम गलत चलेंगे तो क्या हमें इंग्लिश आएगी क्या? राइट, 2 या 3 टाइम्स आई वाज रॉन्ग। अच्छा टाइम्स भी लिखना, कितनी बारी आपको लगा कि आप रॉन्ग प्रूव हुए हो, एंड कितने लोगों को अच्छा लगा कि वाओ यार मैं रॉन्ग प्रूव हुआ बट मुझे कुछ नया सीखने को मिला। मुझे बताओ क्विकली गाइस, मुझे बताओ। आई वाज रॉन्ग 100 टाइम्स, आई वाज रॉन्ग, इतने तो ऑलवेज रॉन्ग। 4 टाइम्स इन्फिनिटी, आई फील 1 लाख टाइम्स, ओके रॉन्ग। अच्छा कोई ऐसा है जिसको लगा मैं कभी गलत था ही ना, अरे अमन जो तूने बताया मैं तो वही कर रहा था, कोई ऐसा है क्या? कोई ऐसा है क्या? You can type right also if you guys were right. ठीक है? Okay. I don't think so. I'm not able to feel. I'm not able. New concept learn. Right? Okay. I was totally wrong. नहीं sir मैं गलत था. I was wrong 2 times. 1 lakh times I was wrong. Okay. चलो. But कितने लोगों को ये भी लगा the moment you understood कि आप लोग गलत हो and आप लोगों ने वो नई चीज सीखने की कोशिश की and you felt amazing. Let me know. How many of you guys felt amazing in all these 18 points? Let me know. How many of you guys listen carefully, right? कितने लोगों को लगा कि हाँ यार, एंड कितने लोगों को अब ये भी बिलीव होने लग गया है कि अगर हम राइट पैटर्न से इंग्लिश सीखते तो वी गाइस कैन इजीली बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। गाइस हमारा मेथड ही गलत है, हम इंग्लिश को ये सोच के बैठे हैं करोड़ों रूल्स है, रेगुलेशन है, इंग्लिश मूवीज देखनी पड़ेंगी, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर्स चाहिए तभी मैं फ्लुएंट हो पाऊंगा। ऑल बुलशिट गाइस, ऑल बुलशिट। अभी तो हमने FS1 कवर अप किया है, अभी आप लोगों के लिए, राइट? बिकॉज देयर इज सो मच। Guys, how many of you guys are getting excited? FS1, FS2, FS3, and even आपको पता है अभी हमने ना 8 sentences discuss किए हैं, right? We have so far discussed 8 sentences. Now, what if I tell you that we, like in my research of 5 to 6 years, we have created the list of around 120 sentences. That's it. 120 sentences में आपका FS1, FS2 and FS3 सारे का सारा पूरा का पूरा इंग्लिश कवर अप हो जाता है। 120 sentences you guys are away, that's it. अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट इंक्रीजिंग योर क्यूरियोसिटी। आपको पता है कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में मान लो मोर देन 1 लाख सेंटेंसेस होंगे। अब सब लोग 1 लाख की सेंटेंसेस की करेंगे क्या? हाँ या ना? राइट, एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो द पॉइंट इज, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। सो द पॉइंट इज, अब ये 1 लाख सेंटेंसेस हैं, अब 1 लाख सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करनी। ये 1 लाख सेंटेंसेस का जो बेस रूट है वो सिर्फ अराउंड 120 सेंटेंसेस पे ही बेस्ड करता है। आज हमने 8 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की, 8 सेंटेंसेस की FS1 से किया हमने प्रैक्टिस, सुपर कूल। अपनी इंग्लिश को हमने 35% करेक्ट किया, राइट? वी मेड इट 35% करेक्ट, राइट? एंड आपने देखा कि वी वर एबल टू टच ऑल द लेवल्स ऑफ सेंटेंसेस, यस और नो? ये लेवल, ये लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, every level we were able to touch. I know you guys are super excited and all that. Don't worry, the people those will be getting the scholarship, we guys are going to give these things to them. So don't worry about it, right? ठीक है? And इसमें बहुत amazing चीजें हैं। अगर मैं आपको base 3 दिखाऊं, you guys are going to feel amazing. ये देखो, how many of you guys can see actually structures of the sentences, how we need to make it happen? It's totally of the another level. This is what it is, right? How many of you guys can see? कितने लोगों को sense and form में दिक्कत होती है? These are the little hacks which you guys need to do. It's like crazy. अभी आपको हर चीज बतानी है. This is what it is, right? चलो, अब ना the point is, कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं? पर एक सबसे बड़ा important point, right?
जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, कितने लोग एक्साइटेड हैं I-19 के लिए? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर I-19? इनक्रेडिबल नॉलेज कमिंग योर वे, incredible knowledge coming your way for I-18 in the form of I-18 और I-19. Excited? यार देखो, अपना how many of you guys want कि ना अपना एक प्रॉपर एक समराइजेशन कर दिया जाए आप लोगों की इंग्लिश का? Excited for it? इंग्लिश का ना, लेट मी मेक द समराइजेशन फॉर इट, लाइक एज पर माई एक्सपीरियंस व्हाट शुड बी योर स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ. मेरी बातों को ध्यान से समझना. देखो गाइज, अगर आप अपने लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, सो कितने लोग एग्री करते हैं दैट दीज फोर आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स और द बिगेस्ट हर्डल्स? हाँ या ना? आपको लगता है मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ग्रामर सही नहीं है, वोकैबुलरी सही नहीं है, फ्लुएंसी सही नहीं है? हाँ या ना? मुझे बताओ, यस और नो? यही दिक्कत है. वर्ब को कैसे याद करना है मैं बताऊंगा. हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है. गाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्ब का जो ट्रिक्स होता है, टेक्निक्स होता है. वी गाइस आर गोना गिव यू दैट, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? ठीक है. सो द पॉइंट इज प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी. पहली चीज तो ये है, अगर तुम में से किसी को भी लगता है कि ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग, आई एम सो सॉरी टू लेट यू नो कि तुम इंग्लिश की दुनिया में ना 5 साल पीछे चल रहे हो, 5 years पीछे चल रहे हो. ग्रामर का नीड है ही नहीं. ऑल वी नीड इज द फॉर्मेशन शीट, जो मैंने आपको बताया, FS1, FS2, FS3, मोर देन इनफ. लाइक इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है. लाइक इट्स नथिंग, राइट? सो इसलिए मैंने फॉर्मेशंस कर दिया. आई फील वेरी सॉरी अबाउट, अगर तुम आज के जमाने में ग्रामर पढ़ रहे हो ना, इससे अच्छा इंग्लिश छोड़ दो. आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, बिकॉज जमाना आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग स्मार्ट हो रहे हैं, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, स्मार्ट टेक्निक्स आर द नीड ऑफ द आवर. डन? ये चीज समझ में आई. अब सो एक तो प्रेशर रिलीज हुआ. कितने लोगों के मन में ग्रामर का प्रेशर रिलीज हो चुका है? मुझे बताओ, हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ, I-18 के नोट्स दिखा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट. कितने लोगों के मन में ग्रामर का प्रेशर रिलीज हो चुका है? ग्रामर तो ज्यादा कुछ है नहीं. फॉर्मेशन, टाइम, सेंस, बेस 1, बेस 2, बेस 3, क्लियर, सॉर्टेड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अब लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज. जब मैं आपकी प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, एंड आज हमें पॉइंट्स I-25 तक डिस्कस कर रहे हैं, सो यू नीड, लाइक वी आर 7 or 8 पॉइंट्स अवे. चलो अब देखो करते हैं. अब द पॉइंट इज, प्रोनाउंसिएशन है, फॉर्मेशन है, वोकैबुलरी है, फ्लुएंसी है. लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर मैजिकल वोकैबुलरी पार्ट. आपके वोकैबुलरी पार्ट से स्टार्ट करें. वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है वैसे, हाँ या ना? मुझे बताओ, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही बात है ना. वोकैबुलरी नहीं आती हो तो हम इंग्लिश में ग्रो कैसे कर पाएंगे? वी नीड वोकैबुलरी टू मेक सेंटेंसेस, वी नीड वोकैबुलरी लाइक टू मास्टर दिस पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज. चलो, आप एक्साइटेड हो एक धमाके के लिए? लाइक सह नहीं पाओगे, राइट? सह लोगे? समवन इज सेइंग एग्जाम के लिए तो ग्रामर पढ़ना पड़ेगा. ओम प्रकाश बेटा, ये एग्जाम की तैयारी नहीं है. अगर आपको लगता है कि एग्जाम पास करना आपके जिंदगी का अंतिम गोल है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप इस जिंदगी में पीछे रह जाओगे. क्योंकि एग्जाम एक लाइफ का पार्ट है. रियल लाइफ में हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है. तुम लोग मेरे से मेरे 12th के मार्क्स पूछ रहे हो क्या? राइट? कुछ लोगों की जिंदगी एग्जाम में अटकी रहती है. ओ, मैं वो गवर्नमेंट का पेपर पास कर लूं, मेरी जिंदगी बन जाएगी. अबे गधे, उस टाइम से जिंदगी स्टार्ट होती है. सिंपल सी बात यही है. एग्जाम पास करने से कोई इंसान कामयाब नहीं होता. जिंदगी एग्जाम पास करने के बाद स्टार्ट होती है, राइट? कुछ लोगों को लगता है ओ मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, मेरी जिंदगी बन जाएगी. जिंदगी IAS ऑफिसर बनने के बाद स्टार्ट होती है कि तुम अपनी जॉब में कैसा परफॉर्म करते हो, वो डिपेंड करता है, राइट? सो लाइफ में थोड़ा बड़ा सोचो, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब नाउ वोकैबुलरी. अच्छा यार, व्हाई यू गाइस आर लर्निंग वोकैबुलरी? फटाफट उस पॉइंट को रिवील करते हैं. यू गाइस विल बी टोटली ब्लोन अवे. यार मुझे ऐसा लगता है वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए. क्यों? क्योंकि हम जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही गोल है कि हम फ्लुएंट साउंड करें, हम अंडरस्टैंडेबल हो. हाँ या ना? कि इफ आई एम स्पीकिंग टुडे, आई कैन मेक द सामने वाला पर्सन अंडरस्टैंड अबाउट माई लैंग्वेज, एंड आई शुड बी अंडरस्टैंडेबल. हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे? मुझे बताओ कि यार बस मैं फ्लुएंट साउंड करूं और मैं अंडरस्टैंडेबल हूं. इससे ज्यादा कोई गोल है क्या इंग्लिश का? मैं यहाँ पे मार्क्स वाली पढ़ाई पढ़ा भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे मार्क्स वाले लोगों से सख्त नफरत है, राइट? बिकॉज हमारे लाइफ में मार्क्स का इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है. रियल लाइफ में, रियल लाइफ मार्क्स से नहीं चलती, आपके अचीवमेंट से चलती है. आप अपने लाइफ को कितना अच्छा कर पाते हो उससे चलती है. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइक साउंड फ्लुएंट एंड अंडरस्टैंडेबल, यस और नो? अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना. तुम्हें दोनों चीजें चाहिए. एक धमाका दूं, धमाका दूं, सह नहीं पाओगे. 3, 2, 1, boom. You can achieve both these goals without vocabulary. हिले क्या? राइट? हिले क्या? हिल गए? पूरा हिल गए क्या? वोकैबुलरी 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 करते रहते हो तुम लोग. बचपन में जो माँ बाप ने, जो टीचर्स ने पढ़ा दिया, खुद का ज्यादा दिमाग लगाया नहीं. एंड ये मैं भी सोचता था वैसे, राइट? सो मुझे भी लगता था वोकैबुलरी स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. रियल पता जब पता लगी ना बातें, नहीं है इंपॉर्टेंट. दोबारा पढ़ो व्हाट आई एम सेइंग. योर गोल इज टू साउंड फ्लुएंट, you should be understandable,
आपको पता है आप ये दोनों चीजें बिना वोकैबुलरी के अचीव कर सकते हो। नहीं आया बिलीव? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यू गाइस हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर द पास्ट 2 or 3 days नाउ, हाँ या ना? इन माय वर्क, लाइक यूट्यूब पे इधर, एंड इवन वर्कशॉप्स में, इवन मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा यू गाइस लेट मी नो, रजत कैन यू प्लीज ओपन अप, राइट? ठीक है, कैन यू प्लीज ओपन अप द चैट बॉक्स? अच्छा मुझे एक बात बताओ गाइस, एम आई फ्लुएंट इन इंग्लिश? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, एम आई फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय द वे? कोई दिक्कत तो नहीं है? फ्लुएंट हूँ, चल जाएगा, गुड, राइट? ठीक है, राइट, सिलेक्शन हो जाएगी कहीं, हाँ? राइट, ओके, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर लूंगा जिंदगी में, इतना इंग्लिश आता है, हाँ? इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा छोटे मोटे, हाँ? राइट, थोड़ा सा जॉब लग जाएगा मेरा, हाँ? राइट, ओके, सो एम आई फ्लुएंट इन इंग्लिश? ग्रेट, थैंक यू। सो नाउ द पॉइंट इज कि एम आई अंडरस्टैंडेबल? मुझे बताओ, एम आई अंडरस्टैंडेबल? मुझे बताओ, राइट? कि क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, अंडरस्टैंडेबल है? ओके, तो यू गाइस आर सेइंग कि यार आई साउंडेड फ्लुएंट, राइट? ठीक है, अच्छा एक मुझे बात बताओ कि जितनी भी मैंने आप लोगों के सामने इंग्लिश बोली, आई वाज स्पीकिंग सर्टेन थिंग्स इन हिंदी, आई वाज स्पीकिंग सर्टेन थिंग्स इन इंग्लिश, डिड आई यूज एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी वर्ड? मुझे बताना, डिड आई यूज एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी वर्ड? जस्ट लेट मी नो, मुझे बताना, मैंने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी वर्ड यूज किया? अच्छा आप कह रहे हो नो 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 नो, अच्छा चैट्स बंद कर दो। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, एक बच्चा कह रहा है अमन सर आपने इंग्लिश की हिस्ट्री चेंज कर दी है, दैट इज सो ट्रू, राइट? नाउ द पॉइंट इज, अब आप इस बात को समझना गाइज, you guys said that I sounded fluent, you guys said that I am understandable, and जब मैंने आपसे पूछा कि मैंने कोई vocabulary word या complicated words यूज किए, आपने कहा no। so ये तीनों चीजें प्रूव करती हैं that you can become fluent in English without vocabulary। ये किस इंसान ने बोला है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें vocabulary की जरूरत है? सिंपल सी बात है, किसने बोला है तुम्हें? who has taught you कि vocabulary is the king? no guys, remember, vocabulary का fluency से कोई लेना देना नहीं है। वोकैबुलरी हमारे फ्लुएंसी को ब्यूटीफाई कर सकती है, कंस्ट्रक्ट नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री? हाँ या ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? मुझे बताओ। आई टुक दिस वंडरफुल, लाइक इन 2 सालों से इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट, राइट? आप मुझे एक बात बताओ ना, I could have used a lot of complicated vocabulary words, but those words were not required. I kept my English simple and fluent. I was understandable. I didn't use any kind of complicated words. एंड अगर मेरे जैसा एक गांव का लड़का कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? तुम लोगों का दिमाग पल्यूट किया गया है, मान लो इस बात को। तुम लोगों ने अपने दिमाग में अपने ही नेगेटिव थॉट्स में जकड़े हुए हो कि ओ मुझे वोकैबुलरी नहीं आती इसलिए मैं फ्लुएंट नहीं हूं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? गधे हो एक नंबर के। आया समझ में? राइट, माइंड पल्यूटेड है। मैं ये नहीं कह रहा वोकैबुलरी करनी नहीं है, अरे करनी है पर बाद में करनी है। इनिशियल स्टेज में वोकैबुलरी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। You guys can imagine that today if I am able to speak in English with a lot of confidence, with a lot of energy, with a lot of this particular enthusiasm, even in this particular sentence I'm not using any kind of complicated vocabulary word, और तुम सिर्फ vocabulary के पीछे पागल हो पागल हो पागल हो। This is not the way, right? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। सिंपल भाषा में मेरी पहले तो बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल, पहला गोल क्या है, पहली चीज क्या है कि गाइस याद रखना, बेसिक फ्लुएंसी किंग होता है। बेसिक फ्लुएंसी स्टार्टिंग में किंग है और हमेशा किंग ही रहेगा। जो लोग वोकैबुलरी के पीछे पड़े रहते हैं उनकी इंग्लिश हमेशा पुअर रहती है। ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं। आया समझ में कि बेसिक फ्लुएंसी पे आपको ध्यान देना है, वोकैबुलरी पे नहीं। इतना चीज समझ में। अब रीजन क्यों ऐसा है मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने सुना है कि जैसे एक वर्ड होता है, आप सुनना, बिजी वर्ड हम बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हाँ या ना? मुझे बताओ, बिजी वर्ड हम यूज करते हैं, यस और नो? बिजी वर्ड आराम से यूज करते हैं। अब मैं ना कुछ इंग्लिश में बोलूंगा एंड आप लोग मुझे बताना कि आप वैसे उस तरीके से भी इंग्लिश बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे बिजी वर्ड यूज करना है एंड आई विल से इट लाइक दिस वे कि हे गाइस माय नेम इज अमन मस्कीन, आई एम वेरी बिजी टुडे, आई विल टेक योर क्लास टुमारो। मैंने इंग्लिश में क्या बोला? हे गाइस माय नेम इज अमन मस्कीन, आई एम वेरी बिजी टुडे, आई एम गोना टेक योर क्लास टुमारो। तुम दिल पे अपना हाथ रख के मुझे बताओ कि बिजी जैसा अभी सिंपल वर्ड जिस तरीके से मैंने बोला या बाकी फ्लुएंट स्पीकर्स बोलते हैं, तुम इसको अभी बेसिक फ्लुएंसी में नहीं बोल पाते हो, हाँ या ना? ये तुम्हारी रियलिटी है, हाँ या ना? मुझे बताओ यस और नो कि हम बिजी जैसे वर्ड को भी अपने बेसिक फ्लुएंसी में नहीं बोल पा रहे अभी कि हे गाइस माय नेम इज अमन मस्कीन, आई एम वेरी बिजी, आई विल टेक योर सेशन टुमारो। बट हमारे दिमाग में कुछ चीजों को डाला गया है। पता है कैसे डाला गया है? दिखाऊं? दिखाऊं? देख नहीं पाओगे अपनी रियलिटी, सह नहीं पाओगे, राइट? चैट्स को बंद करो, दिखाता हूं। जब तुम्हारा अभी तक ये लेवल नहीं है, तुम चलाते हो इंस्टाग्राम। ओहो हो, ये घर वालों ने दे दिया है ना तुम लोगों को, या तुमने खुद ही खरीद लिया? वहां पे तुम्हें ये बताया जाएगा कि वाओ, अरे बिजी वर्ड तो नॉर्मल इंग्लिश है,
ये तो गलत होती है, बिजी वर्ड ही गलत कर दिया है। हमें तो स्वैप्ड वर्ड यूज करना है। तुम्हारे दिमाग में एक बल्ब चलेगा, यार मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, मैं तो बिजी बिजी कर रहा हूँ, पूरी दुनिया स्वैम्ड कर रही है, ये 7,500 लोगों ने स्वयं सीख लिया है, अब मैं भी स्वैम्ड बोलूंगा। दिस इज फुलिश, दिस इज फुलिशनेस, टोटली फुलिशनेस। और अब क्या होगा कि जो इंसान अभी बिजी जैसे वर्ड को भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा, तुम्हें लग रहा है वो स्वैम्ड वर्ड बोल लेगा? हाँ या ना? तुम्हें लग रहा है वो स्वैम्ड वर्ड बोल लेगा? तुम्हें ऐसे लाइक तुम्हें ना इन चीजों में बहुत मजा आता है। यार वेरी नहीं बोलूंगा मैं, वेरी ब्यूटीफुल नहीं बोलूंगा, वो तो बोरिंग होती है ना इंग्लिश। मैं एलिगेंट बोलूंगा। अबे तू अभी वेरी ब्यूटीफुल भी ढंग से नहीं बोल पा रहा है। रियलिटी ये है, तुम अभी वेरी ब्यूटीफुल भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो तू ये सीखना अभी डिजर्व भी नहीं करता। सिंपल सी बात ये है, समझ में आया? मैं आप लोगों के बल्ब को ऑन करना चाहता हूं, बिकॉज ये बात को आप ध्यान रखना कि अगर आपकी अभी बेसिक फ्लुएंसी सही नहीं है, आप इन वर्ड्स के पीछे मत पड़ो। कीप योर इंग्लिश सिंपल, कीप योर इंग्लिश फ्लुएंट, बिकॉज ये जो टाइप की इंग्लिश है, ये आपकी इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने के काम आती है। पर ब्यूटिफिकेशन उस चीज की होती है जो होती है। हाँ या ना? सबको समझ में आया? मजा आया? दिमाग खुला? तुम जो ये बोलते रहते हो ना, वो वोकैबुलरी नहीं आती इसलिए मैं फ्लुएंट नहीं हूं, गधा। लाइक ये चीज मैंने खुद अपने 4 साल बर्बाद किए थे, और जब तक ये चीज मैंने अपने दिमाग से नहीं निकाली, आई वाज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। तुम्हें क्या लगता है जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो वोकैबुलरी के पीछे भागते हैं? नो। आई वाज लिसनिंग टू विराट कोहलीज इंटरव्यू 2 महीने पहले। विराट कोहली आधा घंटा इंग्लिश में बोला, एक नंबर इंग्लिश, राइट, ही वाज सो फ्लुएंट एंड ऑल दैट। पर जब मैंने वोकैबुलरी वर्ड नोटिस किए, सिर्फ एक वोकैबुलरी वर्ड यूज किया, बाकी सारी की सारी बेसिक इंग्लिश वाज देयर। आया समझ में? हाँ या ना? समझ में आया? तुम अपने बेसिक चीजों को छोड़ के बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो। और याद रखना, अब आप बताओ ना, दोनों में से कौन सी चीजें अच्छी लग रही है? कि इंसान है वो ऐसे बोल रहा है, hey guys, my name is Aman Maskeen, I cannot come because I'm very busy today। और ये मैंने बोला, बिजी वर्ड यूज किया, पर you guys can see that particular fluidness। अब एक इंसान है जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, पर उसने ये वर्ड याद कर लिया। और आपको पता है, जब हम वोकैबुलरी वर्ड याद करते हैं तो हमें बोला जाता है, अरे वोकैबुलरी वर्ड याद करने से कुछ नहीं होगा, इसको यूज करो। और यूज करने में हम अपने आप को एक प्रेशर में डालते हैं, और हम कैसे बोलते हैं, I cannot come, swam I am, you also once tomorrow coming, you not swam, when I not swam I will meet, okay bye, this is what it is, right? ठीक है? आया समझ में? कौन सा सही लग रहा है मुझे बताओ? आया ना समझ में? इन सब बेवकूफों वाली चीजों के पीछे मत पड़ो, राइट? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पर बहुत बाद में। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता हूं ना, नाउ आई कैन यूज दिस, नाउ आई कैन लर्न दीज वोकैबुलरी वर्ड्स। अब मैं कर सकता हूं, पहले हम थोड़ा बहुत ढंग से बेसिक बोलने तो लग जाए। हाँ या ना? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद फटाफट अपने नोट्स में ये चीज लिखो। पता लगा? शॉक्ड हुए? याद रखना, वोकैबुलरी इज नॉट नीडेड फॉर फ्लुएंसी। अगर फ्लुएंट होना है, अगर नहीं होना, तो अगर तुम 10 साल और फ्लुएंट नहीं होगे तो किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारे अलावा। सिंपल सी बात ये है। हाँ या ना? मुझे बताओ, कितने लोग इस, राइट, ठीक है, कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हो कि अगर तुम लोग फ्लुएंट नहीं हुए इंग्लिश में, लॉस किसका है? इट्स योर्स, राइट? अंडरस्टैंड इट। सो अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ प्रॉपर लॉजिकल वे। Vocabulary is not needed for fluency. You can easily sound fluent in English without even learning vocabulary words. Formations पे ध्यान देना। Don't run after fancy vocabulary words. Basic fluency is the key to master it. लिखो, right? लिखो। PDF नहीं दी जाएगी, लिखना है, कुछ मेहनत भी करो, right? ठीक है, right? This is what it is, right? आया समझ में? सबको ये चीजें समझ में आ रही हैं? PDF नहीं मिलेगी, मेहनत करो, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज मे बी जो लोग हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम उनको उन्हीं को ही स्कॉलरशिप देंगे। सो प्लीज फोकस, राइट? सबको ये चीज समझ में आई है? नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइज, अब ना कितने लोग रेडी हैं अपनी अब प्रॉपर एक स्ट्रक्चरिंग करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की? मैं आपको बताता हूं, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ठीक है, समवन इज राइटिंग, कहां थे सर आप? मैंने 5 साल अपने वेस्ट कर दिए। आई नो, राइट? इफ यू गाइज डोंट टेक राइट एक्शंस, अगर आप राइट जगहों से नहीं सीखोगे, अगर आप राइट मेथड्स को फॉलो नहीं करोगे, हो सकता है जिंदगी भी वेस्ट हो जाए। यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, बिकॉज लुक, द पॉइंट इज इंग्लिश इज सिंपल, यू कैन इजिली बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। देयर इज नो रॉकेट साइंस, ठीक है? एंड आप कहीं से भी सीख सकते हो इंग्लिश, खुद से, अपने आप से, कहीं और से, हम लोगों से, एनीवेयर यू गाइस कैन लर्न, बट स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, और तुम्हें लगना चाहिए कि तुम फ्लुएंट हो जाते हो। होता क्या, तुम प्रैक्टिस बहुत करते हो पर गिव अप कर देते हो क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आते। डेली रिजल्ट्स फील होने चाहिए, दैट इज द की। चलो नाउ मूविंग अहेड, अब फटाफट, अब आप लोगों की एक प्रॉपर इंग्लिश प्लानिंग करने का टाइम आ गया।
और अब मैं कुछ आपके सामने डायग्राम्स रखूंगा, उसको फटाफट ड्रॉ करना। वो तुम्हारी इंग्लिश की राइट सीक्वेंस होगी जिंदगी भर के लिए। अगर तुम फ्यूचर में जाके, जो मुझे लग रहा है 100% फ्लुएंट होंगे, तो वो इसी पैटर्न के थ्रू ही फ्लुएंट होंगे। पैटर्न बता रहा हूं, एंड दैट पैटर्न वुड बी, ये शॉकिंग तो हो चुका है। देखो अब पैटर्न पता है क्या है। अब ये चारों चीजें है ना, कौन सी चीज कब करनी है मैं आपको वो बता रहा हूं। सबसे पहले इमेजिन अ फैक्ट, दिस इज यू एंड यू गाइज हैव टू बिकम like fluent in English. What should be the pattern? Boom. This should be the pattern. सबसे पहले you need to master the formation sheet, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो तो कुछ कर पाओगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्ट होना है, फिर you need to concentrate upon the basic fluency, then the style, and then even the vocabulary. सबको ये चीजें समझ में आ रही है? हाँ या ना? सबको ये चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना? How many of you guys can relate with it? सबको ये चीजें समझ में आई है? करेक्ट, बेसिक फ्लुएंसी, स्टाइल एंड वोकैबुलरी। पंगा क्या होता है, तुम लोगों का लेवल इधर है या इधर है। तुम अपना लेवल छोड़ देते हो और डायरेक्टली वोकैबुलरी पढ़ने लगते हो। क्या तुम्हारी कभी इंग्लिश ठीक हो पाएगी? द आंसर इज नो। आपको पता है एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का सीक्रेट क्या है? स्टाइल इज देयर सीक्रेट। वो अपनी फॉर्मेशन शीट्स, बेसिक फ्लुएंसी के बाद अपने स्टाइल को इंप्रूव करते हैं। आपने देखा ये पूरा इवेंट जो मैंने लिया, आई डिडंट यूज एनी काइंड ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, बट स्टिल यू गाइस वर एबल टू कनेक्ट विद मी। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रॉपर ये पैटर्न से कनेक्शन पता लगता है। आया समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? राइट सर, मेरी लाइफ रीस्टार्ट कर दी है, थैंक यू सो मच। सबको ये चीज समझ में आई है? राइट सबको ये चीज समझ में आई? सना अब आगे बढ़ जाओ। आई 89 19 रिवाइज नहीं होगा, अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे सीखो। सबको ये चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एंड मैं आपको एक और पैटर्न बताता हूं। If you talk about Virat Kohli, if I talk about Shah Rukh Khan, if I talk about any heroine, Katrina Kaif, Deepika, right? Any heroine or even any YouTubers, तुम सब लोगों को ना उनका बोलने का तरीका याद है? हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे मुझे बताओ। तुम सब लोगों को उनके बोलने का तरीका याद है ना, कि शाहरुख खान कैसे बोलता है, विराट कोहली कैसे बोलता है। तो देखा जाए, तुम्हें हर इंसान का बोलने का स्टाइल याद रहता है एट द एंड। अगर तुम 2 दिन बाद, होप सो कि इफ यू गाइज रिमेंबर मी, यू माइट रिमेंबर मी कि हाँ यार एक बंदा था, वो काफी एनर्जी से बोलता था, पढ़ा तो रहा था कुछ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? पर क्या आपको कभी भी किसी एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का कोई पर्टिकुलर ऐसे वोकैबुलरी वर्ड याद आता है? एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स हो सकता है काफी सारे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करते हो, बट आपके दिमाग में कोई घुसता है क्या? नहीं, बिकॉज स्टाइल इज द की। और वो वैसे भी वोकैबुलरी वर्ड बहुत कम यूज करते हैं। तो सिंपल सीक्वेंस वुड बी दिस, एंड इस सीक्वेंस को करने के लिए इंग्लिश असरा इज द बेस्ट मेथड। करेक्ट करने के लिए वी नीड टू मेक इट हैपन विद द फॉर्मेशन शीट, राइट? अगर आपको अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, फॉर्मेशन शीट वुड बी द की, जिसमें FS1, FS2 एंड हेयर बिकम्स FS3। मैं प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूं। अगर तुम लोगों ने अपनी इंग्लिश की इस तरीके से प्लानिंग की है तो नहीं आने वाली। कितने लोगों ने कभी भी अपनी इंग्लिश की इस तरीके से प्लानिंग नहीं की है? मुझे बताओ, हाँ या ना? कितने लोगों ने कभी भी अपनी इंग्लिश की इस तरीके से प्लानिंग नहीं की है? यस और नो? अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरी प्लानिंग करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड कुछ लोग मुझे बोले जा रहे हैं सर स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। सो बेटा अभी स्कॉलरशिप की बात नहीं करनी, ये पढ़ लो, क्या पता ये समझ में नहीं आया और स्कॉलरशिप भी चली गई। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो FS1, FS2, FS3, एंड नाउ इन ऑर्डर टू बिकम फास्ट एंड क्विक, you need to work upon what? You need to work upon your basic fluency. ये जो पैटर्न है ना, ये बेसिक फ्लुएंसी का है, ये बेसिक फ्लुएंसी का है। एंड अभी ये जो बेसिक फ्लुएंसी है, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वो पार्ट्स क्या है अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी देयर इज सो मच यू हैव टू एब्जॉर्ब। एंड फिर जब आप फास्ट एंड क्विक हो जाते हो और आपको कॉन्फिडेंट कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल अबाउट हाउ यू डेवलप योर स्टाइल। 3 पार्ट्स हैं, फॉर्मेशन शीट करेक्ट होने के लिए, बेसिक फ्लुएंसी फास्ट एंड क्विक होने के लिए, एंड स्टाइल कॉन्फिडेंट होने के लिए। लास्ट में अगर जगह बन जाती है तब आता है वोकैबुलरी पार्ट, वरना वोकैबुलरी पार्ट आता ही नहीं। This is what it is. आया सबको समझ में? How many of you guys loved it? And एक चीज मैं आपको और बताऊं, which you guys are going to love it like crazy. मैं ना एक बारी इस पेज को ना वो कर लेता हूं, एक बारी कॉपी पेस्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं मैं आपको, एंड फिर हम लोग नोट्स पे आएंगे। नोट्स को हमें रिवाइज भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ना है। जस्ट गिव मी 1 क्विक मिनट, here we go. Just give me, okay, yeah. Now, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं? हाँ या ना? How many of you guys think that it takes more time and more efforts? फटाफट बताओ guys, everyone. More time and more efforts. फटाफट बताओ everyone, quickly. Let me know. कितने लोगों को ऐसा लगता है? कितने लोग working professionals हैं? It takes time. Seriously, right? ऐसा। अब what if I tell you? चलो चैट्स को बंद कर दो। अच्छा, क्या ये मेरा बोलना सही रहेगा कि आप लोगों को ज्यादा टाइम एंड ज्यादा मेहनत इसलिए लग सकता है क्योंकि शायद आप में से काफी सारे लोगों को ये नहीं पता
कि आप लोग अभी इंग्लिश शस्त्रा के किस लेवल पे हो, हाँ या ना? आप लोगों को यही नहीं पता आपका लेवल ये वाला है, आपका लेवल यहाँ पे हो, आप इधर हो या आप इधर हो। अब मान लो एक इंसान है, उसका एक्चुअल लेवल ये है और वो डायरेक्टली लोगों से स्पीकिंग करने लग जाए, क्या वो इंप्रूवमेंट फील करेगा? वो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना पीछे जाएगा। मोर टाइम एंड मोर एफर्ट्स उन्हीं लोगों को इंग्लिश में लगते हैं जिनको अपना इंग्लिश का करंट लेवल नहीं पता। उनको यही नहीं पता कि उनका लेवल क्या है। डू यू गाइस एग्री? इमेजिन अ फैक्ट, यू आर अ बिगिनर और बिगिनिंग से ही मैं आपको बोलूं कि यार FS1 सीख लेते हैं, तो क्या आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि वंस यू नो योर लेवल एंड वंस आपको पता चल जाता है कि ओके मेरा लेवल यही है और मुझे सारी चीजें नहीं, मुझे सिर्फ 2 चीजें करनी है अगले 2 दिनों के लिए ताकि मैं अपना लेवल को ग्रो करके इधर आ जाऊं। डू यू गाइस एग्री? इट विल टेक योर लेस टाइम एंड लेस एफर्ट्स, बिकॉज ये चीज हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं। इंग्लिश के लिए ज्यादा टाइम और ज्यादा मेहनत गधे लोग करते हैं। तुम लोग गधे हो क्या? राइट, राइट। मुझे बताओ कितने लोग एग्री करेंगे कि क्या हमें हार्ड वर्क करना है लाइफ में या स्मार्ट वर्क करना है? इट्स अ क्लियर केस ऑफ स्मार्ट वर्क एंड दैट्स एग्जैक्टली वी गाइस विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम टुमारो। अब फटाफट सब लोग अपने नोट्स पे आओ, अभी नोट्स खत्म नहीं हुए हैं, फटाफट अपने नोट्स पे आओ। एवरीवन क्विकली come on the notes and draw this particular 2 structures, right? And by the way, do you guys agree it is one of your best ever English event ever? Is it so? Is it so? हाँ या ना? एक बार, I really want to know, by the way, right? Chats को open करो. How many of you guys think that this has been your best ever English event? अभी event खत्म नहीं हुआ है, अभी तो start हुआ है यार, right? You guys can type I20 if you support this. I20 if you support this particular line quickly. It has been the best ever event for you guys. Okay, wonderful. It's like crazy. People are writing it like seriously. Loved it. Aman sir, big fan. Mind-boggling session. Okay, now chalo chats को बंद करो फटाफट. Let's come on this part. फटाफट सब लोग इस चीज को नोट करो. ये थोड़ी फोटो यहाँ पे गलत हो गई है, but not a problem. But आप अपने इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो. Right, the ultimate step by step sequence. Right, vocabulary का तो मैंने आपको बता ही दिया था. The ultimate step by step sequence क्या होगी? ये चीज ड्रॉ करो. Everyone, take the screenshot or draw it. Take the screenshot or draw it. And लोगों ने स्कॉलरशिप चुके हैं उनकी लेनी है, उनको ये नोट्स पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी. टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है? बिकॉज आई कैन सी सम पीपल हैव टेकन द स्कॉलरशिप. सो जितने भी लोगों ने स्कॉलरशिप ले ली है, आई थिंक 78 पीपल, तो आप लोगों को ये जो पीडीएफ है, ये जो रिकॉर्डिंग है एंड ये जो मैं नोट्स बना रहा हूं अभी आप लोगों के सामने लाइव, ये मिल जाएंगे. टेंशन मत लेना, ठीक है? इजी है. बाकी जिन लोगों ने अभी तक स्कॉलरशिप नहीं ली है या उनका लाइक व्हाटएवर इट कुड बी द रीजन, व्हाटएवर द रीजन इज, तो यू गाइस नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग. राइट, ठीक है? आया? राइट, ठीक है? सबको ये चीज आई है. द अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप. हाँ रौनक, आपने ले लिया तो आप प्लीज ये कर सकते हैं, आपको फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बाकी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें. क्विकली गाइस, क्विकली टेक इट. फिर हमें I21 पे जाना है. क्विकली गाइस, क्विकली गाइस, फटाफट. डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ तनवीर, मिल जाएगी आपको बच्चे, अब थोड़ा पेशेंस रखो. स्क्रीनशॉट ले लिया? नाउ अब ना कितने लोग, पहले तो मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव काइंड ऑफ अंडरस्टूड द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन? बिकॉज अब ना आप लोगों का कल से क्या रूटीन होने वाला है, लेट्स डिस्कस दैट. बिकॉज हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड टू कम टुमारो? बाय द वे मुझे बताओ कितने लोग एक्साइटेड है कल आने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड? स्कॉलरशिप छोड़ दो, अभी जिन्होंने लेनी थी वो ऑलरेडी ले चुके हैं. राइट, अभी आई डोंट थिंक सो वी आर लेफ्ट विद अराउंड 160-165 स्लॉट्स, बट विल सी. अभी पढ़ लेते हैं फिर स्कॉलरशिप कर लेंगे. राइट, डोंट वरी अबाउट इट. राइट, ठीक है? स्कॉलरशिप इज नॉट माय मेन फोकस. तुम लोगों को पढ़ाना, जिसने स्कॉलरशिप लेनी है वो ऑटोमेटिकली ले ही रहे हैं. राइट, ठीक है? चलो, द पॉइंट इज एक्साइटेड. चलो अब पहले तो मुझे ये बताओ, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं राइट जिनको ये इंग्लिश शस्त्र का कंसेप्ट समझ में आया है? राइट, बिकॉज अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो हो सकता है कि कल आपको एंट्री ना मिले, कल उन्हीं लोगों को काइंड ऑफ एंट्री मिलेगी. राइट, जो लोग आज अच्छे मुझे आंसर्स देने वाले हैं. मुझे बताओ हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, राइट, कितने लोगों को इंग्लिश शस्त्र का कंसेप्ट समझ में आ गया? ग्रेट. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन एंड वाटर कंसेप्ट? ताफ प्रिंसिपल समझ में आया? फर्स्ट ट्रूथ अबाउट फ्लुएंसी समझ में आया? द लेजेंडरी डी टेक्निक, हमने टाइम एंड सेंस किया, फॉर्मेशन शीट्स की, अभी FS1 FS2 रह गई है, बेसिक फ्लुएंसी की, सीक्रेट ऑफ एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स सीखा कि हाँ यार वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. राइट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गाइस विल बी डूइंग नाउ. एंड अगर मैं यहाँ पे नोट्स की बात करूं, राइट, ठीक है, हियर वी गो. अगर मैं यहाँ पे नोट्स की बात करूं, जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पे किसी को भी इन 20 पॉइंट्स में कोई डाउट तो नहीं है?
मुझे बताओ, मैं आपको पूरे पॉइंट्स रिवाइज नहीं करेंगे, बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस आइडिया दैट वी कंप्लीटेड सो मेनी थिंग्स ओवर हियर? यस और नो? मैं धीरे धीरे आगे लेके चल रहा हूँ, राइट, ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे. ऑल दीज थिंग्स वी कवर्ड इट इन द लास्ट, like I think 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, like 1 hour each we guys were with together. Look at the way we guys did the things. Like these are too many, huh? Too many to swallow, right? चलो, अब ना पॉइंट इज, अब कितने लोग चाहते हैं, अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में यार एक बॉटल नेक बन चुका है? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव गॉटन दैट पर्टिकुलर बॉटल नेक इन योर लाइफ कि यार आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश यू आर नॉट एबल टू ग्रो? लेट मी नो. जस्ट बिकॉज ऑफ द इंग्लिश यू आर नॉट एबल टू ग्रो. And what if I tell you that, like, हम लोगों के पास, like the way we guys have been training and all that, we guys are only associated with those people जो लोग अभी अपने लाइफ में इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, and then they want to come out from that particular struggle as quickly as possible. Chats को हम बंद करते हैं. Now कितने लोग excited हैं, right? कितने, how many of you guys are excited for this wonderful FS1, FS2 and FS3? And not just this is just the beginning of the correctness part. And even to make your English fast and quick and confident के बाद आपका स्टाइल कैसे improve कर रहे हैं, each and everything. How many of you guys are excited for it? Yes, I know you guys are excited. Hold your horses, guys. अब हो सकता है कि तुम्हें, like, तुम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाए. So here we go. कितने लोगों को पहले तो ये चीज समझ में आई है कि यार अगर हम सीक्वेंस में चलते हैं, we guys can get the results quickly and that too with less efforts? Yes or no? How many of you guys can relate with it? Great. And एक चीज का मैं आपको रियलाइजेशन करवा देना चाहता हूं कि आपको पता है, इंग्लिश ना आना, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको डरा रहा हूं, हाँ मैं आपको डरा रहा हूं, राइट, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर. इंग्लिश ना आना एक सबसे बड़ा रीजन बन चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का. 83% वर्किंग प्रोफेशनल्स इसलिए अपने जॉब में, कितने लोगों को ये चीज समझ में आती है कि आपका शायद जो ग्रोथ है वो इंग्लिश की वजह से रुका हो? मे बी आपकी जो पर्सनालिटी है वो ढंग से इनहांस होके आई ही नहीं रही है बिकॉज इंग्लिश वाज द प्रॉब्लम. यस और नो? यस और नो? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गाइस विल बी डूइंग इट फ्रॉम टुमारो, राइट? कल डे 3 में सब लोग आ रहे हैं, हाँ या ना? एंड जितने भी लोग आ रहे हैं वो प्लीज, राइट, अभी थोड़ी देर रुक जाए इफ यू गाइस वांट टू स्टे, बिकॉज डे 3 का लिंक मैं अभी ड्रॉप करने वाला हूँ. 9, 9, 10 पे कर दूंगा मैं डे 3 का लिंक ड्रॉप, राइट? आपकी पूरी प्लानिंग एंड ऑल दैट, स्कॉलरशिप का लिंक आई विल बी ड्रॉपिंग एट अराउंड 9, 9, 10. द पॉइंट इज, जो लोग, काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले भी चुके हैं, तो जो लोग स्कॉलरशिप ले चुके हैं, इफ दे वांट टू लीव दे कैन लीव द सेशन. बट जिन